हाँ जी, ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬ ਜੀਕੇ ਦੇ ਕੁਝ ਕੁਐਸਚਨ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਾਂ ਔਰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਪਹਿਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਹੜਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ਇਨ ਦ ਬੈਟਲ ਆਫ ਮੁਲਤਾਨ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਫੋਰਸਿਸ ਵਰ ਲੈਡ ਬਾय। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਐਂਗਲੋ ਸਿੱਖ ਵਾਰਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਐਂਗਲੋ ਸਿੱਖ ਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਲੜਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਬੇਸਿਕਲੀ। ਫਸਟ ਐਂਗਲੋ ਸਿੱਖ ਵਾਰ ਜਿਹੜੇ ਕਿ 1845-46 ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਔਰ ਦੂਜੀਆਂ ਐਂਗਲੋ ਸਿੱਖ ਵਾਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ 1848-49 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਬੈਟਲ ਆਫ ਮੁਲਤਾਨ ਜਿਹੜੀ ਹੋਈ ਸੀਗੀ, ਇਹ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਸੈਕੰਡ ਐਂਗਲੋ ਸਿੱਖ ਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਫੋਰਸਿਸ ਵਰ ਲੈਡ ਬਾय। ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਫੋਰਸਿਸ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਮਾਂਡ ਕੌਣ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ? ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮੁਲਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀਵਾਨ ਮੂਲ ਰਾਜ ਦਾ ਰਾਜ ਸੀਗਾ, ਔਰ ਦੀਵਾਨ ਮੂਲ ਰਾਜ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਲਾਹੌਰ ਦਰਬਾਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਹਰ ਸਾਲ ਦਾ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਪੈਸਾ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਪੈਸਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੰਗਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਔਰ ਉਸਨੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਉਹਨੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੱਤੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਲਾਹੌਰ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਰਾਜ ਚੱਲਦਾ ਸੀਗਾ, ਭਾਵੇਂ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜਾ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਸੀਗੇ, ਪਰ ਬੇਸਿਕਲੀ ਰਾਜ ਕਿਹਦਾ ਚੱਲਦਾ ਸੀ? ਉਹ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦਾ ਹੀ ਸ਼ਾਸਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਔਰ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਡਿਸਾਈਡ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਥੋਂ ਮੂਲ ਰਾਜ ਨੂੰ ਹਟਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਦਾ ਗਵਰਨਰ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਟੁਕੜੀ ਭੇਜੀ ਸੀਗੀ, ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਹਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਸਰਦਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਭੇਜਿਆ ਕਿ ਕਾਹਨ ਸਿੰਘ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਮੁਲਤਾਨ ਦਾ ਗਵਰਨਰ ਬਣੇਗਾ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦੋ ਬੰਦੇ ਭੇਜੇ ਸੀਗੇ, ਦੈਟ ਵਾਜ਼ ਇੱਕ ਤਾਂ ਐਗਨਿਊ ਭੇਜਿਆ ਸੀਗਾ, ਔਰ ਦੂਜਾ ਜਿਹੜਾ ਭੇਜਿਆ ਸੀਗਾ ਦੈਟ ਵਾਜ਼ ਆਪਣਾ ਐਂਡਰਸਨ ਭੇਜਿਆ ਸੀਗਾ। ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਮੂਲ ਰਾਜ ਤੋਂ ਉੱਥੋਂ ਚਾਬੀਆਂ ਲੈ ਲਈਆਂ, ਪਰ ਮੂਲ ਰਾਜ ਦੇ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਨੇ ਵਿਦਰੋਹ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨੋਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਫਿਰ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ, ਔਰ ਉਸ ਲੜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਖੀਰਕਾਰ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮੁਲਤਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜਿੱਤ ਵੀ ਪਾ ਲਈ, ਔਰ ਉਸ ਜਿੱਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਹਰਾ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਜਾਂਦਾ? ਉਹ ਜਨਰਲ ਵਿਸ਼ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਂਦਾ, ਜਨਰਲ ਵਿਸ਼ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਮੁਲਤਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿੱਤ ਪਾਈ ਸੀਗੀ ਉਹ। ਸੋ ਗਫ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਫੌਜ ਦੇ ਸੈਨਾਪਤੀ ਸੀਗੇ, ਪਰ ਮੁਲਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਫੌਜ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਕੌਣ ਲੈ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ? ਦੈਟ ਵਾਜ਼ ਜਨਰਲ ਵਿਸ਼ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਸੋ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬੇਸਿਕਲੀ ਸੈਕੰਡ ਐਂਗਲੋ ਸਿੱਖ ਵਾਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲੜਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਉਹ ਮੁਲਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਵਿਦਰੋਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਲਾਸਟ ਲੜਾਈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਐਂਗਲੋ ਸਿੱਖ ਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬੈਟਲ ਆਫ ਗੁਜਰਾਤ ਹੋਈ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਫਰਵਰੀ 1849 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ। ਔਰ ਉਸ ਲੜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤੇ ਹਿਊ ਗਫ ਸੀਗੇ, ਔਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਅਟਾਰੀ ਵਾਲੇ ਸਰਦਾਰ ਸੀਗੇ, ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਅਟਾਰੀ ਵਾਲਾ ਤੇ ਚੜ੍ਹਤ ਸਿੰਘ ਅਟਾਰੀ ਵਾਲਾ। ਔਰ ਉਸ ਲੜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੋਈ। ਉਸ ਬੈਟਲ ਨੂੰ ਬੈਟਲ ਆਫ ਗਨਸ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਬੈਟਲ ਆਫ ਗਨਸ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਦੋਨੋਂ ਚੜ੍ਹਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸਰੈਂਡਰ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਜਲਾਵਤਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਰਾਜ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ। When was the States Reorganization Commission appointed by the Government of India? State Reorganization Commission 1947 ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਇਆ। 1950 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਣਿਆ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹ 3 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀ ਆਈਡੈਂਟੀਫਾਈ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਪਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੀਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਈ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ 1953 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਦਰਾਸ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਤੇਲਗੂ ਜਿਹੜੇ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕੀ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਟੇਟ ਅਲੱਗ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਦਰਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਹੁਣ ਚੇਨਈ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਮਿਲ ਸਪੀਕਿੰਗ ਏਰੀਆ ਹੈ, तेलुगु अलग जुबान है। तो तेलुगु बोलने वाले लोगों ने ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਇੱਕ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ, ਔਰ ਉਸ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੋਟੀ ਸ੍ਰੀ ਮੱਲੂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਰਨ ਵਰਤ ਰੱਖਿਆ, ਔਰ 56ਵੇਂ ਦਿਨ ਅਪਰੋਕਸੀਮੇਟਲੀ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ। ਔਰ ਡੈਥ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ। ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ
ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਲੱਗ ਸਟੇਟ ਔਨ ਦਾ ਬੇਸਿਸ ਆਫ ਲੈਂਗੁਏਜ ਬਣਾਉਣੀ ਪਈ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਕੀ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਹੁਣ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਬੇਸਡ ਸਟੇਟ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਸੀਗੀ, ਉਹ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸੀਗੀ। ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੋਂ ਹੀ ਇੱਕ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਜਿਹਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਟੇਟ ਰੀਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਟੇਟ ਰੀਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਕਿ 1953 ਵਿੱਚ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਹਦੀ ਸਦਾਰਤ ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਚੇਅਰਮੈਨਸ਼ਿਪ ਕਹੀਏ ਜਸਟਿਸ ਫਜ਼ਲ ਅਲੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਦਾਰਤ ਦੇ ਅੰਡਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਇਹ ਰੀਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਪਾਇੰਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੋ ਸਾਡਾ ਜਵਾਬ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਇੱਥੇ, ਇਹ ਦੈਟ ਇਜ਼ 1953, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਜਵਾਬ ਹੋਏਗਾ ਹੈ। ਦਿੜਬਾ ਤਹਿਸੀਲ ਫਾਲਸ ਇਨ ਵਿਚ ਆਰ ਦਾ ਫੋਲੋਇੰਗ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟਸ। ਦਿੜਬਾ ਤਹਿਸੀਲ ਕਿਹੜੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦੀ ਹੈ? ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛੇ ਜਾਂਦੇ, ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਕਿਸੇ ਕੌਂਸਟੀਚੁਐਂਸੀ ਤੋਂ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦਿੜਬਾ ਜਿਹੜੀ ਕੌਂਸਟੀਚੁਐਂਸੀ ਹੈ ਇਹ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਚੀਮਾ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਫਾਈਨੈਂਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ, ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਨੰਬਰ 2 ਕਹੀਏ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੌਂਸਟੀਚੁਐਂਸੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਐਗਜ਼ਾਮ 'ਚ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਐਵੇਂ ਹੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਉਹ ਧੂਰੀ ਤੋਂ ਇਸ ਵਾਰ ਜਿੱਤ ਕੇ ਆਏ ਨੇ, ਤਾਂ ਧੂਰੀ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਕਈ ਵਾਰੀ ਐਗਜ਼ਾਮ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਕੁਐਸਚਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ, ਦਿੜਬਾ ਤਹਿਸੀਲ ਫਾਲਸ ਇਨ ਵਿਚ ਆਰ ਦਾ ਫੋਲੋਇੰਗ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟਸ। ਸੋ ਦਿੜਬਾ ਜਿਹੜੀ ਕੌਂਸਟੀਚੁਐਂਸੀ ਹੈ ਇਹ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਰੂਰ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਰੋਡ, ਪਾਤੜਾ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਰੋਡ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਇੱਕ ਤਹਿਸੀਲ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਇਹ ਇੱਥੇ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦਿੜਬਾ ਤਹਿਸੀਲ। ਇਹ ਪਟਿਆਲੇ ਤੋਂ ਰੋਡ ਆਉਂਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਇੱਥੋਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਸੜਕ ਮੁੜਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਫਿਰ ਇਹ ਦਿੜਵੇ ਨੂੰ ਸੜਕ ਮੁੜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸੰਗਰੂਰ ਤੋਂ ਰੋਡ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਦਿੜਵੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਦਿੜਬਾ ਜਿਹੜੀ ਤਹਿਸੀਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਸੰਗਰੂਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। The new shape and order was given to Gurmukhi letters by which one of the following gurus? ਕਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗੁਰਮੁਖੀ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਅੱਖਰ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਪ੍ਰੋਪਰ ਅੱਖਰ ਬਣਾਏ? ਸੋ ਪੰਜਾਬੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੀ ਪ੍ਰੋਪਰ ਸ਼ੇਪ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਦੂਜੇ ਗੁਰੂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਪੰਜਾਬੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਨੂੰ ਇੱਕ ਫਾਰਮਲ ਸ਼ੇਪ ਦਿੱਤੀ। ਭਾਵੇਂ ਕਈ ਅੱਖਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਪਰ ਸ਼ੇਪ ਜਿਹੜੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਉਹ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਦਿੱਤੀ। ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਇਹ ਪੁਰਾਣੀ ਲੰਡੇ ਭਾਸ਼ਾ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਇਹ ਅੱਖਰ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਲਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਿ ਪੁਰਾਣਾ ਨਾਮ ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਸੀਗਾ, ਔਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਕਸੈਸਰ ਬਣਾਇਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਦੂਜੇ ਗੁਰੂ ਥਾਪਿਆ ਸੀਗਾ। 1539 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਬਣੇ ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਔਰ 1552 ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸੈਕੰਡ ਗੁਰੂ ਰਹੇ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਡੇਰਾ ਬਣਾਇਆ ਸੀਗਾ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਡੇਰਾ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਹ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਇਹ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਗੱਦੀ ਮਿਲੀ ਤਾਂ ਗੁਰਗੱਦੀ ਦੇ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਕਿਹੜਾ ਸ਼ਹਿਰ ਵਸਾਇਆ, ਉਹ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ਹਿਰ ਆ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਸਾਇਆ ਸੀਗਾ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਪੰਜਾਬੀ ਗੁਰਮੁਖੀ ਲੈਟਰਸ ਦਾ ਫਾਰਮਲ ਸ਼ੇਪ ਦੇ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਜਾਂ ਗੁਰਮੁਖੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਸ਼ੇਪ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਸੋ ਸਾਡਾ ਜਵਾਬ ਹੋਏਗਾ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ। ਰੋਸ਼ਨੀ ਫੇਅਰ ਐਟ ਜਗਰਾਉਂ ਇਜ਼ ਹੈਲਡ ਇਨ ਆਨਰ ਆਫ ਵਿਚ ਫੋਲੋਇੰਗ ਮੁਸਲਿਮ ਪੀਰਸ। ਜਗਰਾਉਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰੋਸ਼ਨੀ ਦਾ ਮੇਲਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਫਕੀਰ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੇਲਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਦੋ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੈ ਕਿ ਅਬਦੁਲ ਕਾਦਰ ਜਲਾਨੀ, ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਮਸ਼ਹੂਰ ਸੰਤ ਹੋਏ ਨੇ, ਔਰ ਦੂਜਾ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬਾਬਾ ਮੋਹਕਮ ਦੀਨ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਇਹ ਜਗਰਾਉਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸੀਗੇ। ਔਰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਆਏ ਸੀਗੇ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਬ ਜਹਾਂਗੀਰ ਆਏ ਸੀਗੇ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਆਪਣਾ ਪੱਲਾ ਫੜ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਦਾਤ ਮੰਗੀ ਸੀਗੀ। ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ੀ, ਔਰ
उसकी खुशी दे विच बादशाह ने इत्थे सोने दे दीवे जगा के जिहड़ा सीगा इन्हां नूं सोने दे दीवे जिहड़े सीगे पेश कीते सीगे और उसे करके जिहड़ा सीगा कहा जांदा कि इत्थे रोशनी दा मेला जगराओं दे विच मनाया जांदा है। सो इहदे विच मैं तुहानूं दस्सिया कि दो ऑप्शनस ने, एक तो अब्दुल कादर जिलानी, ਇਹ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਨੇੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਡੇਰਾ ਹੈ, ਪਰ ਬਾਬਾ ਮੋਹਕਮਦੀਨ, ਇਹ ਦੋ ਆਪਸ਼ਨਸ ਨੇ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਆਪਸ਼ਨ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਪਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਢੁਕਦੀ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਹੈ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਬਾਬਾ ਮੋਹਕਮਦੀਨ ਵਾਲੀ ਆਪਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਢੁਕਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਗਰਾਓਂ ਵਿਖੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਡੇਰਾ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। Which are the following rivers border Pathankot, Gurdaspur and Amritsar districts of Punjab? ਕਿਹੜੀਆਂ ਦੋ ਨਹਿਰਾਂ ਪਠਾਨਕੋਟ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀਆਂ ਬਾਰਡਰਸ ਨੂੰ ਟੱਚ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ? ਸੋ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ, ਜੇ ਨਕਸ਼ਾ ਦੇਖੀਏ ਪੰਜਾਬ ਦਾ, ਤਾਂ ਰਾਵੀ ਦਰਿਆ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਬੇਸਿਕਲੀ ਆ ਪਠਾਨਕੋਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਰਾਵੀ ਦਰਿਆ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਇਹ ਨਾਰਥ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਹੋ ਗਿਆ, ਔਰ ਇਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜਾ ਨਿਚਲੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਇਹ ਬਿਆਸ ਦਰਿਆ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੋ ਸਾਡਾ ਜਵਾਬ ਕੀ ਬਣੇਗਾ? ਬਿਆਸ ਤੇ ਰਾਵੀ ਦਰਿਆ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। Which of the following statement is correct? ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਠੀਕ ਹੈਗੀ ਹੈ? ਲਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਸਿੱਖ ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੰਪੋਜੀਸ਼ਨ ਕਿਹਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ? ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ। ਦੂਜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਇਜ਼ ਕੰਪੋਜ਼ਡ ਬਾय ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ। ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਠੀਕ ਨੇ। ਲਾਵਾਂ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਲਿਖੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਔਰ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਾਠ ਹੈ ਉਹ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਰਚਨਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਆਪਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਠੀਕ ਨੇ। ਔਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਚਾਰ ਲਾਵਾਂ ਲਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਫਾਰਮਲ ਲੀਗਲ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਜਿਹੜੀ ਸਹਿਮਤੀ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਲੀਗਲ ਐਕਸੈਪਟੈਂਸ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਐਕਟ ਬਣਿਆ ਸੀਗਾ। ਕਿਹੜਾ ਐਕਟ ਬਣਿਆ ਸੀਗਾ? ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਐਕਟ ਬਣਿਆ ਸੀਗਾ। ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਐਕਟ 1909 ਵਿੱਚ ਬਣਿਆ ਸੀਗਾ ਔਰ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਲਾਵਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਮੈਰਿਜ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਉਹ ਲੀਗਲੀ ਐਕਸੈਪਟੇਬਲ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਮੰਨੀ ਗਈ ਸੀਗੀ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ 2012 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਹੋਇਆ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਮੈਰਿजेस, ਉਹ ਵੀ ਇਸੇ ਐਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖ ਮੈਰਿजेस ਹੈਗੀਆਂ ਦੇ ਕੈਨ ਬੀ ਰਜਿਸਟਰਡ ਅੰਡਰ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਐਕਟ ਐਜ਼ ਪਰ 2012 amendment to this particular law. Who among the following guru is named as बंदी छोड़? ठीक है जी, हाँ जी, बंदी छोड़ गुरु किहनूं कहा जाता है? And which another festival is celebrated on the बंदी छोड़ दिवस also? So गुरु हरगोबिंद साहब ਨੂੰ बंदी छोड़ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਗੁਰੂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਗਵਾਲੀਅਰ ਦੇ ਕਿਲੇ ਤੋਂ ਇਹ ਉੱਥੋਂ ਨਿਕਲੇ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ 52 ਪਹਾੜੀ ਰਾਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਛੁਡਵਾਇਆ ਸੀ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦੀ ਛੋੜ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਬੰਦੀ ਛੋੜ ਗੁਰੂ ਵੀ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਪਹੁੰਚੇ ਉਸ ਦਿਨ ਦੀਵਾਲੀ ਵਾਲਾ ਦਿਨ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਉਸ ਦਿਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੀਵਾਲੀ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਜੋੜ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਉਹਨੂੰ ਬੰਦੀ ਛੋੜ ਦਿਵਸ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਦੀਵਾਲੀ ਨੂੰ ਤੇ ਦੀਵਾਲੀ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡਾ ਆਪਸ਼ਨ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਇਹ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਜੀ ਔਰ ਦੀਵਾਲੀ ਸਾਡਾ ਇਹਦਾ ਆਪਸ਼ਨ ਹੋਏਗਾ। ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਜੀ ਔਰ ਦੀਵਾਲੀ ਇਹਦਾ ਆਪਸ਼ਨ ਬਣੇਗਾ। Read the following statements and answer which are true. Namdhari or the Kuka movement was founded by Baba Dayal ji. Baba Ram Singh was exiled to Rangoon where he died in 1984. ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਕਿਹੜੀ ਗਲਤ ਹੈ? ਨਾਮਧਾਰੀ ਤੇ ਕੂਕਾ ਮੂਵਮੈਂਟ, ਇਹ ਮੂਵਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਇਹ ਕਿਹਨੇ ਬਾਬਾ ਦਿਆਲ ਜੀ ਨੇ ਨਿਰੰਕਾਰੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਬਣਾਈ ਸੀਗੀ ਉਹ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਨਾਮਧਾਰੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇਹ ਬਾਬਾ ਬਾਲਕ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਇਹਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖੀ ਸੀਗੀ ਤੇ ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਨੀਂਹ ਰੱਖੀ ਸੀ ਇਹਦੀ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਬਾਬਾ ਬਾਲਕ ਸਿੰਘ ਦੇ ਚੇਲੇ ਸੀਗੇ ਔਰ ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ
ਐਗਜ਼ਾਈਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਜਲਾਵਤਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਔਰ 1884 ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੰਗੂਨ ਵਿਖੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡੈਥ ਵੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਸੋ ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਗਲਤ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਨਾਮਧਾਰੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖੀ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਬਾਬਾ ਬਾਲਕ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਚੇਲੇ ਸੀਗੇ ਔਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਲਾਵਤਨ ਕਰਕੇ ਰੰਗੂਨ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਖਾਲਸਾ ਕਾਲਜ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਾਸ ਫਾਊਂਡਡ ਇਨ ਵਿਚ ਈਅਰ? ਖਾਲਸਾ ਕਾਲਜ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਕਿਹੜੇ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ? ਇਹ 1892 ਵਿੱਚ ਖਾਲਸਾ ਕਾਲਜ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਇਹ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਹੋਏਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਲੈਂਡ ਰਿਕਾਰਡ ਸੁਸਾਇਟੀ ਵਾਸ ਫਾਊਂਡ ਬਾय ਪੰਜਾਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ। ਇੱਕ ਸੁਸਾਇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀਗੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸੁਸਾਇਟੀਜ਼ ਐਕਟ 1860 ਵਿੱਚ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹੈ। ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਸੁਸਾਇਟੀਜ਼ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਸੁਸਾਇਟੀਜ਼ ਐਕਟ 1860 ਵਿੱਚ ਰਜਿਸਟਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਉਹ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦਾ ਮੇਨ ਪਰਪਸ ਕੀ ਸੀਗਾ? ਉਹਦਾ ਮੇਨ ਪਰਪਸ ਇਹੀ ਸੀਗਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦਾ ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਰਿਕਾਰਡ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਰਾ ਰਿਕਾਰਡ ਲੱਠਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੇਨਟੇਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਇਹਦੇ ਚ ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਕਿਤੇ ਕੰਪਾਈਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਡਿਜੀਟਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਇਸ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਇਹ ਸਾਰੇ ਰਿਕਾਰਡ ਨੂੰ ਡਿਜੀਟਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਹਾਸਲ ਹੋ ਸਕੇ। ਸੋ the purpose was to provide efficient record related services to the farmers, ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਇਹ ਦਾ ਮੇਨ ਪਰਪਸ ਸੀਗਾ ਔਰ ਇਹ ਸੁਸਾਇਟੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਹੈ ਔਰ ਜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਇਹ ਕਿ ਇਹਦਾ ਪਰਪਸ ਕੀ ਸੀ? ਟੂ ਓਵਰਸੀ ਮੋਨੀਟਰਿੰਗ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਕੰਪਿਊਟਰਾਈਜੇਸ਼ਨ। ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਡਾਟਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕੰਪਿਊਟਰਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇਸ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੁਆਰਾ। ਰੀਡ ਦ ਫੋਲੋਇੰਗ ਸਟੇਟਮੈਂਟ। ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਵਾਸ ਬਿਲਟ ਇਨ, ਇਟ ਵਾਸ ਬਿਲਟ ਬਾय। ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਕਿਹਨੇ ਬਣਵਾਇਆ ਸੀਗਾ? ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਜੀ ਨੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਬਣਵਾਇਆ ਸੀਗਾ ਔਰ ਇਹ ਕਦੋਂ ਬਣਿਆ ਸੀਗਾ? 1609 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਣਿਆ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਸਾਡਾ ਜਵਾਬ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਇਹ ਡੀ ਆਪਸ਼ਨ ਸਾਡਾ ਜਵਾਬ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਬਣਵਾਇਆ ਸੀਗਾ ਔਰ 1609 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਬਣੇ ਸੀ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ 5 ਤਖਤ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 3 ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ, ਦੂਜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤਖਤ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਤੀਜਾ ਤਖਤ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਆਪਣਾ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦਾ ਔਰ ਚੌਥਾ ਤਖਤ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਔਰ ਪੰਜਵਾਂ ਤਖਤ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਸੋ 5 ਤਖਤ ਨੇ ਔਰ ਇਹਨਾਂ 5 ਤਖਤਾਂ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 3 ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਇੱਕ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਔਰ ਇੱਕ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪੁਸ਼ਪਾ ਗੁਜਰਾਲ ਸਾਇੰਸ ਸਿਟੀ ਇਨ ਪੰਜਾਬ ਇਜ਼ ਏ ਡੈਸ਼ ਐਂਡ ਇਜ਼ ਏ ਸਿਚੁਏਟਡ ਇਨ ਦ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਕਿਹੜੇ? ਇਹ ਓਨਲੀ ਸਾਇੰਸ ਸਿਟੀ ਇੰਡੀਆ ਹੈ, ਇਹ ਲਾਰਜੈਸਟ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਲਾਰਜੈਸਟ ਤੇ ਫਰਸਟ ਹੈ ਕਿ ਲਾਰਜੈਸਟ ਸੈਕਿੰਡ ਹੈ ਔਰ ਕਿਹੜੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ? ਪੁਸ਼ਪਾ ਗੁਜਰਾਲ ਸਾਇੰਸ ਸਿਟੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਦੂਜਾ ਸਾਇੰਸ ਸਿਟੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ ਸਾਇੰਸ ਸਿਟੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕਲਕੱਤੇ ਵਿੱਚ ਬਣਿਆ ਸੀਗਾ ਔਰ ਦੂਜਾ ਸਾਇੰਸ ਸਿਟੀ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਆਪਣਾ ਇਹ ਕਪੂਰਥਲੇ ਵਿਖੇ ਪੁਸ਼ਪਾ ਗੁਜਰਾਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਅੰਤਰਗਤ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਸੋ ਸਾਡੀ ਆਪਸ਼ਨ ਕਿਹੜੀ ਹੋਏਗੀ? ਇਟ ਇਜ਼ ਅ ਸੈਕਿੰਡ ਸਾਇੰਸ ਸਿਟੀ ਇਨ ਇੰਡੀਆ ਔਰ ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ? ਜਲੰਧਰ ਕਪੂਰਥਲਾ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਪੂਰਥਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਡਾ ਆਪਸ਼ਨ ਜਵਾਬ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ? ਡੀ ਆਪਸ਼ਨ ਸਾਡਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬ ਹੋਏਗਾ, ਲਾਰਜੈਸਟ ਐਂਡ ਸੈਕਿੰਡ ਸਾਇੰਸ ਸਿਟੀ ਇਨ ਇੰਡੀਆ ਔਰ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਕਪੂਰਥਲੇ ਹੈ। The southern part of Punjab is known as, ਆਪਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਤਿਕੋਣ ਜਿਹਾ ਇਲਾਕਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇੱਕ ਬਿਆਸ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਇੱਕ ਸਤਲੁਜ ਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਸਦਰਨ ਵਾਲਾ ਪਾਰਟ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਇਹਨੂੰ ਮਾਲਵਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਦੁਆਬਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਆਪਾਂ ਮਾਝਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਬਿਆਸ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਔਰ ਇੱਥੇ ਆਪਣਾ ਕੀ ਪੈਂਦਾ? ਇੱਥੇ ਰਾਵੀ ਦਰਿਆ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਲਾਕਾ ਹੈ ਸਾਰਾ ਦਾ ਸਾਰਾ ਇਹਨੂੰ ਮਾਲਵਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਔਰ
ਇਹ ਨਕਸ਼ਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈਗਾ ਇਹ। ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦ ਮਾਲਵਾ ਏਰੀਆ। Which of the following statement is not correct? ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਜੋਤੀ ਸਰੂਪ is situated at, ਇੱਥੇ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, not correct, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਜੋਤੀ ਸਰੂਪ situated ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਚ situated ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਆਂਸਰ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਇਹ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਕੀ ਪੁੱਛਿਆ, not correct। ਇਹ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਇਹ true ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ not correct। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਜੋਤੀ ਸਰੂਪ associated with ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਜ਼ੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ, ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਐਂਡ ਮਾਤਾ ਸੁੰਦਰੀ ਜੀ, ਇਹ ਵੀ ਟਰੂ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਟਰੂ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀ ਕ੍ਰੀਮੇਸ਼ਨ ਹੋਈ ਸੀਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਵੀ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਜ਼ੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ ਐਂਡ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਵਰ ਮਾਰਟਰਡ ਐਟ ਦਿਸ ਪਲੇਸ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਟਰੂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਰਟਰਡਮ ਕਿੱਥੇ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਸਿਚੁਏਟਡ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਡਾ ਜਵਾਬ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਜਵਾਬ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਦਿਸ ਪਲੇਸ ਵਾਸ ਪਰਚੇਜ਼ ਬਾय ਸੇ ਟੋਡਰਮਲ, ਇਹ ਵੀ ਟਰੂ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੀ ਹੋ ਕਿ ਉੱਥੇ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਨਵਾਬ ਸੀਗਾ, ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਨ ਸੂਬੇਦਾਰ ਸੀਗਾ, ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਔਰ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸੰਸਕਾਰ ਵਾਸਤੇ ਜਗ੍ਹਾ ਲੈਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਮੋਹਰਾਂ ਉਹ ਉਨੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਵਿਛਾ ਦੇਵੇ ਜਿੰਨੀ ਜਗ੍ਹਾ ਉਹਨੂੰ ਸੰਸਕਾਰ ਵਾਸਤੇ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਔਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉੱਥੇ ਦੀਵਾਨ ਟੋਡਰਮਲ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਦੇ ਇੱਕ ਸੇਠ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੋਨੇ ਦੇ ਸਿੱਕੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਵਿਛਾ ਕੇ ਜਿੰਨੀ ਜਗ੍ਹਾ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਉਹ ਲਿੱਤੀ ਸੀਗੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉੱਥੇ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਸੋ ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਸੇਠ ਟੋਡਰਮਲ ਨੇ ਖਰੀਦੀ ਸੀਗੀ। ਇਹ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੀ ਲੱਭਣਾ, ਨਾਟ ਕਰੈਕਟ। ਤਾਂ ਨਾਟ ਕਰੈਕਟ ਕਿਹੜਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ, ਤੀਜੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਸਾਡੀ ਨਾਟ ਕਰੈਕਟ ਹੋਈ। ਸੋ ਸਾਡਾ ਜਵਾਬ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਇੱਥੇ, ਥਰਡ ਆਪਸ਼ਨ ਸਾਡਾ ਇੱਥੇ ਜਵਾਬ ਹੋਏਗਾ। Which of the following statement about Justice Gurnaam Singh is true? He was the first ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਆਫ ਪੰਜਾਬ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇੱਥੇ ਟਰੂ ਪੁੱਛਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਨਾਟ ਟਰੂ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੀ ਵਾਜ਼ ਦ ਫਰਸਟ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਆਫ ਪੰਜਾਬ, ਇਹ ਟਰੂ ਹੈ, ਬਿਕਾਜ਼ ਹੀ ਵਾਜ਼ ਦ ਫਰਸਟ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਜਦੋਂ ਕਿ ਸੰਤ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਆਪਣੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੀਗੇ ਆਪਣੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਣਨਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਹੀ ਸਰਵਡ ਐਜ਼ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਟਵਾਈਸ, ਦੋ ਵਾਰ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਰਹੇ, ਥੋੜੇ ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਵਾਸਤੇ ਰਹੇ ਪਰ ਦੋ ਵਾਰ ਰਹੇ। ਔਰ ਹੀ ਵਾਜ਼ ਦ ਜੱਜ ਆਫ ਪੈਪਸੂ ਐਂਡ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ, ਯੈਸ ਇਹ ਵੀ ਟਰੂ ਹੈ। ਹੀ ਰਿਜ਼ਾਈਨ ਫਰਮ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਟੂ ਜੁਆਇਨ ਕਾਂਗਰਸ, ਇਹ ਗਲਤ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਨੇ ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਠੀਕ ਹੈ, ਪਹਿਲੀ, ਦੂਜੀ, ਤੀਜੀ। दैट मीन्स बी ऑप्शन साडा जवाब होएगा कि ही वाज द फर्स्ट चीफ मिनिस्टर श्रोमणी अकाली दल चीफ मिनिस्टर ऑफ पंजाब। 1966 ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਹੋਈ ਇਨ ਹਰਿਆਣਾ, ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਕੁਝ ਇਲਾਕੇ ਗਏ, ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸੀਗੇ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਬਣੇ ਸੀ, ਗਿਆਨੀ ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ ਮੁਸਾਫਰ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ, ਉਹ ਜਸਟਿਸ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਦਾਰਤ ਹੇਠ ਬਣੀ, ਔਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਹੀ ਵਾਜ਼ ਦ ਫਰਸਟ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਆਫ ਪੰਜਾਬ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਫੁੱਟ ਪਈ, ਔਰ ਫੁੱਟ ਪੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਣੇ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਵਾਸਤੇ, ਔਰ 1967 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤੀਜੇ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਣੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਫਿਰ ਟੁੱਟੀ, ਫਿਰ ਜਸਟਿਸ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਦੁਬਾਰਾ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਣੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ 1968 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਣੇ ਸੀਗੇ। ਸੋ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਟੁੱਟਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਜੱਜ ਰਹੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ, ਉਹ 2 ਵਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਣੇ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ। ਔਰ 1973 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ ਹਾਦਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਵੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀਗੀ। ਸੋ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਆਪਾਂ ਜਵਾਬ ਦੇਵਾਂਗੇ।
क्वेश्चन साडे कोल है हु वाज द फाउंडर ऑफ आलूवालिया मिसल। आलूवालिया मिसल ਦੇ ਫਾਊਂਡਰ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਰ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਆਲੂਵਾਲੀਆ ਇਸ ਮਿਸਲ ਦੇ ਫਾਊਂਡਰ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਮਿਸਲਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਫਾਊਂਡਰਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਪਤਾ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੋਂ ਕੁਐਸਚਨ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਕੁਐਸਚਨ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੀ ਆਉਂਦਾ। ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਫੈਜ਼ਲਪੁਰੀਆ ਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਮਿਸਲ ਦੀ ਜਾਂ ਸਿੰਘਪੁਰੀਆ ਮਿਸਲ ਦੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਸਲ ਫਾਊਂਡਡ ਸੀਗੀ? ਦੈਟ ਵਾਜ਼ ਬਾਈ ਨਵਾਬ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮਿਸਲ ਸੀਗੀ ਉਹ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੁਜਰਾਂਵਾਲਾ ਦੀ ਮਿਸਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜਾਂ ਸ਼ੁਕਰ ਚੱਕਿਆ ਮਿਸਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਜਿਸ ਤੋਂ ਕਿ ਸਰਦਾਰ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਦੈਟ ਵਾਜ਼ ਫਾਊਂਡਡ ਬਾਈ ਸਰਦਾਰ ਚੜ੍ਹਤ ਸਿੰਘ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਸੀਗੇ। ਸਰਦਾਰ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪਿਤਾ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀਗਾ ਸਰਦਾਰ ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਆਪਾਂ, ਨਾਂ ਹੈਗਾ ਸੀਗਾ। ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਬਾਕੀ ਮਿਸਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਕਨਈਆ ਮਿਸਲ ਹੈ, ਉਹ ਸਰਦਾਰ ਜੈ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਾਊਂਡਰ ਸੀਗੇ ਉਹ। ਫਿਰ ਡੱਲਾ ਵਾਲਾ ਮਿਸਲ ਹੋ ਗਈ ਤੁਹਾਡੀ, ਕਰੋੜ ਸਿੰਘ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਾਰੀਆਂ ਮਿਸਲਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੋਂ ਇੱਕ ਨਾ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਐਗਜ਼ਾਮ 'ਚ ਜ਼ਰੂਰ ਆਉਂਦਾ। ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਫੁਲਕੀਆਂ ਮਿਸਲ ਹੋ ਗਈ, ਚੌਧਰੀ ਫੂਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਮਿਸਲ ਬਣਾਈ ਸੀਗੀ। ਸੋ ਮਿਸਲਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਯਾਦ ਰੱਖਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਇੱਥੋਂ ਕੁਐਸਚਨ ਐਗਜ਼ਾਮ 'ਚ ਜ਼ਰੂਰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਵਿਚ ਆਫ ਦ ਫੋਲੋਇੰਗ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਅ ਕੰਡੀ ਏਰੀਆ। ਹੁਣ ਕੰਡੀ ਏਰੀਆ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ, ਕਿਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਕੰਡੀ ਏਰੀਆ ਦੇਖਿਆ ਕਿਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ ਕਿ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੈ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਹ ਦੇਖਦੇ ਕਿ ਹਿਮਾਲਿਆਸ ਵੀ ਪੈ ਗਏ ਤੁਹਾਡੇ, ਇਹ ਹਿਮਾਲਿਆਸ ਹੋ ਗਏ। ਔਰ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਤਕਰੀਬਨ ਪਹਾੜੀ ਇਲਾਕਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਹੋ ਗਿਆ, ਇੱਥੇ ਪਠਾਨਕੋਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਾ ਕੇ ਪਠਾਨਕੋਟ ਪੈ ਜਾਂਦਾ। ਹੁਣ ਇਸ ਏਰੀਏ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਏਰੀਆ ਪੈਂਦਾ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਪਹਾੜਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਏਰੀਆ ਪੈਂਦਾ, ਉਸ ਏਰੀਆ ਨੂੰ ਕੰਡੀ ਏਰੀਆ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਔਰ ਤਕਰੀਬਨ ਇਹ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਦਾ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ 300 ਤੋਂ 400 ਮੀਟਰ ਦੀ ਇਹਦੀ ਉਚਾਈ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਉਚਾਈ ਕਿੱਥੋਂ ਮਾਪਦੇ ਹਾਂ? ਫਰੋਮ ਦਾ ਸੀ ਲੈਵਲ ਮਾਪ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਅਪਰੋਕਸੀਮੇਟਲੀ 300 ਤੋਂ 400 ਮੀਟਰ ਦੀ ਉਚਾਈ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਇਲਾਕਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਕੰਡੀ ਏਰੀਆ। ਔਰ ਇੱਥੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਿੱਟੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਪਥਰੀਲੀ ਮਿੱਟੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੋਅ ਬਹੁਤ ਵਗਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਾੜਾਂ ਜਦੋਂ ਬਾਰਿਸ਼ਾਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਬਾਰਿਸ਼ਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਇੱਥੋਂ ਲੰਘਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਉਹ ਬਾਰਿਸ਼ਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਲੰਘਦਾ ਹੋਇਆ ਮਿੱਟੀ ਨੂੰ ਚੀਰਦਾ ਹੋਇਆ ਨਿਕਲਦਾ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ? ਚੋਅ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਏਰੀਆ ਹੈ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਨੋਨ ਐਜ਼ ਦਾ ਕੰਡੀ ਏਰੀਆ। ਔਰ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਪਠਾਨਕੋਟ ਵੀ ਇੱਥੇ ਪੈ ਗਿਆ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਵੀ ਇੱਥੇ ਪੈ ਗਿਆ, ਰੋਪੜ ਵੀ ਇੱਥੇ ਪੈ ਗਿਆ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਲੁਧਿਆਣਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਦੈਟ ਵਿਲ ਨਾਟ ਬੀ ਪਾਰਟ ਆਫ ਦਾ ਕੰਡੀ ਏਰੀਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਸੋ ਇਹ ਕੰਡੀ ਏਰੀਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੰਡੀ ਇਜ਼ ਡਿਰਾਈਵਡ ਫਰੋਮ ਦਾ ਡੋਗਰੀ ਵਰਡ। ਡੋਗਰੀ ਦਾ ਮਤਲਬ, ਡੋਗਰੀ ਚ ਵਰਡ ਕੰਡਾ, ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਕਿਨਾਰਾ। ਸੋ ਇਹ ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੈਂਦਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਇਹਨੂੰ ਕੰਡੀ ਏਰੀਆ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਔਰ ਕੰਡੀ ਏਰੀਆ ਕਵਰ 10% ਦਾ ਟੋਟਲ ਲੈਂਡ ਆਫ ਪੰਜਾਬ। ਇਹ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਐਗਜ਼ਾਮ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਿ ਕੰਡੀ ਏਰੀਆ ਕਿੰਨੀ ਜਗ੍ਹਾ ਘੇਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਤਕਰੀਬਨ 10% ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲੈਂਡ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਕੰਡੀ ਏਰੀਆ ਕਹਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਹ ਆਪਣਾ ਸ਼ਿਵਾਲਿਕ ਹਿਲਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਇਲਾਕਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕੰਡੀ ਏਰੀਆ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬੱਸੀ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਰੋਪੜ, ਬਲਾਚੌਰ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ, ਮੁਕੇਰੀਆਂ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਏਰੀਆ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਇਹਨੂੰ ਕੰਡੀ ਏਰੀਆ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਏਰੀਆ ਹੈ। Which one of the following statement about ਆਦਿ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ is not true? ਆਦਿ ਗ੍ਰੰਥ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸਿੱਖ ਹਿਸਟਰੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਦੋ ਗ੍ਰੰਥ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਆਉਂਦਾ ਆਦਿ ਗ੍ਰੰਥ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਪੋਥੀ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਔਰ ਦੂਜਾ ਆਉਂਦਾ ਆਪਣਾ ਦਮਦਮੀ ਬੀੜ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਸੋ ਦਮਦਮੀ ਬੀੜ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਬੀੜ ਹੈ? ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿੱਥੇ ਲਿਖਵਾਈ ਸੀਗੀ? ਇਹ ਜਦੋਂ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਵਿਖੇ, ਦਮਦਮਾ ਵਿਖੇ, ਉੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਬੀੜ ਲਿਖਵਾਈ ਸੀਗੀ। ਔਰ ਉਸ ਬੀੜ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਰਾਈਟਰ ਸੀਗੇ ਜਾਂ ਲਿਖਾਰੀ ਸੀਗੇ ਉਹ ਕੌਣ ਸੀਗੇ? ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ। ਕੌਣ ਸੀਗੇ? ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਸੀਗੇ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਕੁਐਸਚਨ ਕਿਹੜਾ? ਆਦਿ ਗ੍ਰੰਥ, ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਆਦਿ ਗ੍ਰੰਥ? ਆਦਿ ਗ੍ਰੰਥ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਲਿਖਵਾਇਆ ਸੀਗਾ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 5 ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵੀ ਹੈ, ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵੀ ਹੈ, ਔਰ ਜਿਸੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਭੱਟਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵੀ ਹੈ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ
ਆਦਿ ਗ੍ਰੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪੰਜੋ ਗੁਰੂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਪੰਜ ਗੁਰੂ ਔਰ ਨਾਲ ਭਗਤ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਔਰ ਭੱਟਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੋ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਆ ਦੇਖੀਏ ਆਪਾਂ, ਇਟ ਵਾਸ ਕੰਪਾਈਲਡ ਇਨ ਦ ਫਰਸਟ ਡਿਕੇਡ ਆਫ 17th ਸੈਂਚੁਰੀ। 17th ਸੈਂਚੁਰੀ ਕਿੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏਗੀ? 1601 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1700 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ 17th ਸੈਂਚੁਰੀ ਹੋ ਗਈ। ਸੋ 1604 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੰਪਾਈਲ ਹੋਇਆ, ਆਦਿ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਕੰਪਾਈਲ ਹੋਏ, ਤਾਂ that means this statement is correct। ਇੱਥੇ ਕੀ ਪੁੱਛਿਆ? not correct। ਇਹ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਓ, ਜਦੋਂ ਵੀ not ਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਅੰਡਰਲਾਈਨ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰੋ ਉੱਥੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਗਲਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਫਿਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ। ਇਟ ਕੰਟੇਨਸ ਵਰਸਿਸ ਆਫ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਲਿਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਇੱਥੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਯੈਸ, ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਦੋਹੇ ਨੇ ਉਹ ਆਦਿ ਗ੍ਰੰਥ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹ। ਇਟ ਕੰਟੇਨ ਵਰਸਿਸ ਜਨਰਲੀ ਆਫ ਭਗਤ ਤੁਲਸੀਦਾਸ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਟ ਕੰਟੇਨ ਸੇਇੰਗਸ ਆਫ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ, ਇਹ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਤੁਲਸੀਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਐਡ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਉਹ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਸਾਡਾ ਜਵਾਬ ਕੀ ਬਣੇਗਾ ਉਹ ਕਿ ਇਟ ਕੰਟੇਨ ਵਰਸਿਸ ਆਫ ਭਗਤ ਤੁਲਸੀਦਾਸ। ਇਹ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਇਟ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਕਰੈਕਟ, ਨਾਟ ਕਰੈਕਟ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡਾ ਜਵਾਬ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਇਹ ਵਾਲੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਹੋਏਗਾ ਉਹ। ਇਟ ਆਦਿ ਗ੍ਰੰਥ ਡਸ ਨਾਟ ਕੰਟੇਨ ਵਰਸਿਸ ਆਫ ਦ ਸਗੁਨ ਭਗਤਸ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਬੇਸਿਕਲੀ ਭਗਤੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭਗਤ ਹੋਏ ਨੇ, ਇੱਕ ਸਗੁਨ ਭਗਤ ਹੋਏ ਨੇ, ਇੱਕ ਨਿਰਗੁਣ ਭਗਤ ਹੋਏ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਨਿਰਗੁਣ ਫਾਰਮ ਆਫ ਗੋਡ ਨੂੰ, ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਕਿ ਫਾਰਮਲੈਸ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਿੱਖ ਧਰਮ 'ਚ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਆਕਾਰ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਸ਼ੇਪ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਭਗਤਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਨਿਰਗੁਣ ਭਗਤ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਰਗੁਣ ਭਗਤ ਕੌਣ ਨੇ? ਜਿਹੜੇ ਫਾਰਮ ਵਾਲੇ ਗੁਰੂ, ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਜਿਵੇਂ ਰਾਮਚੰਦਰ ਜੀ, ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ, ਵਿਸ਼ਨੂੰ, ਮਹੇਸ਼, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਕਿ ਰੱਬ ਦੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸਰੂਪ ਹੈ, ਸ਼ਕਲ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਗੁਣ ਭਗਤ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਤੁਲਸੀਦਾਸ ਜੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਾਮਾਇਣ ਤੇ ਸੀਗੀ ਉਹ ਟ੍ਰਾਂਸਲੇਟ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਸਰਗੁਣ ਭਗਤ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਆਦਿ ਗ੍ਰੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨਹੀਂ। ਫੁੰਮਣੀ ਇਜ਼ ਐਨ ornament in ਪੰਜਾਬ, this is worn in, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਫੁੰਮਣੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਇਹ ਕੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪੂਰੇ ਜਿੰਨੇ ornaments ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਿਸਟ ਬਣਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਯਾਦ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। Which of the following ਪੰਜਾਬੀ folk dance is not a dance for the females, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਜਾਗੋ ਵੀ ਡਾਂਸ ਹੈ, ਗਿੱਧਾ ਵੀ ਡਾਂਸ ਹੈ, ਕਿੱਕਲੀ ਵੀ ਡਾਂਸ ਹੈ। ਜੁਗਨੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਇਹ ਜੁਗਨੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਬੋਲੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਬੋਲੀਆਂ ਨੇ ਇਹ। ਸੋ ਜੁਗਨੀ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਏ ਡਾਂਸ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੁਗਨੀ ਸਾਡਾ ਇੱਥੇ ਜਵਾਬ ਹੋਏਗਾ। ਸੋ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਦੇਖੇ ਨੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜੀਕੇ ਦੇ ਕੁਝ ਕੁਐਸਚਨ ਨੇ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਹੋਏਗੀ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯਾਦ भी करोगे। थैंक यू। हेलो एवरीवन, चलिए अपने अगले सेक्शन की तरफ चलते हैं। जीके के क्वेश्चंस को देखते हैं कि क्या क्वेश्चंस रहे हैं, आसपास के एक्सप्लेनेशंस क्या हैं। सो स्टे ट्यून्ड, ठीक है। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग वाज द यंगेस्ट ऑफ द एवोल्यूशनरीज टू बी हैंग्ड बाय द ब्रिटिश एम्पायर। वो कहते हैं कि सबसे कम उम्र के व्यक्ति जिन्हें फांसी दी गई, ठीक है, वो ब्रिटिश काल के अंदर कौन थे? तो आपके पास वो व्यक्ति कौन है? खुदीराम बोस, ठीक है। मुजफ्फरपुर केस के अंदर इन्हें फांसी की सजा दी गई थी, ठीक है। चलिए उसके बाद इन लोगों को भी फांसी दी गई है क्लास। सूर्य सेन वाज हैंग, ठीक है, चटगांव रेड के अंदर इनको मिली थी, ठीक है। उधम सिंह वी ऑल नो कि इन्हें माइकल और डायर की हत्या के लिए हैंग किया गया था, ठीक है। मदन लाल डींगरा को भी आपके यूरोप के अंदर किए गए मर्डर के लिए इनको हैंग किया गया था। तो ये सारे क्वेश्चंस आपको पूछे जाते हैं, किस केस में पकड़े गए वो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपके पास अमीर खुसरो gave his first graphical description of Johor of Rajput women after the victory of Alauddin over which Rajput state। वो कहता है किस राजपूत स्टेट को जीतने के बाद पहली बार आपके अमीर खुसरो साहब ने जौहर का मेंशन किया था कि अगर मृत्यु हो जाती है आपके हस्बैंड की, उसके बाद आप जौहर कमिट करोगे, आप अग्निकुंड में स्नान करोगे, मतलब अपने आप को खुद जला लोगे, ठीक है। तो ये आपको सबसे पहला एविडेंस कहां पर मिलता है? रणथंभौर में। चित्तौड़ का भी मेंशन है क्लास, जहां पे आपकी रानी पद्मावत जौहर कमिट करती हैं, लेकिन उससे पहले जब रणथंभौर को जीता गया था तो अमीर खुसरो ने इसका मेंशन किया था, ठीक है। तो कंफ्यूज मत होना, रणथंभौर इज द राइट आंसर, ठीक है।
चलिए, द मंगोल्स अंडर चंगेज खान इन्वेडेड इंडिया ड्यूरिंग द रीजन ऑफ, भारत में उस समय शासक कौन था जिस समय चंगेज खान की सेना ने हमला किया था? तो वो कौन थे? इल्तुतमिश। ठीक है, उस समय पर तुम्हारे जलालुद्दीन मकबरानी जो कि ईरान के पर्शिया के राजा थे वो भारत आते हैं, इनसे असाइलम मांगते हैं लेकिन ये मना कर देते हैं। ठीक है, ये कहते हैं कि नहीं, किसी तरीके का असाइलम नहीं मिल सकता है, रीजन बीइंग अगर मैंने आपको असाइलम दिया तो कल को आपकी वजह से चंगेज खान मुझ पर भी अटैक करेगा। ठीक है, तो इट वाज इल्तुतमिश जिनके समय में ये हुआ था। Then the Indian Independence League was set up by Ras Bihari Bose. Very important class, कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है। क्लास जो लीग्स इंडिया से बाहर बनी है वो इंपॉर्टेंट है, आपको प्लीज पढ़नी चाहिए, जरूर पढ़ना। जो रेवोल्यूशनरी पार्टीज बनी है वो भी आपको पता होनी चाहिए। इनके फाउंडर्स कौन है, इनके हेडक्वार्टर्स कहाँ थे, एक बार छोटे से कॉलम्स हैं हिस्ट्री के बुक्स में, फुटनोट्स बने होते हैं, प्लीज ट्राई टू रिमेंबर, ये क्वेश्चंस बहुत कॉमन है आपके पास। ठीक है, चलिए, द फर्स्ट वीमेन यूनिवर्सिटी इन इंडिया वाज फाउंड इन, भारत की पहली यूनिवर्सिटी जो पूना के अंदर बनाई गई थी उसके फाउंडर कौन थे? धोंडो केशव कार्वे। ठीक है, डीके कार्वे के नाम से बड़े प्रसिद्ध हैं। ये यूनिवर्सिटी आपके पूना में ओपन की गई थी, आज भी चलती है क्लास, ऐसा नहीं है यूनिवर्सिटी बंद हो गई, यूनिवर्सिटी आज भी बड़ी फेमस है। चलिए, हु वाज द फर्स्ट यूरोपियन टू ट्रांसलेट द भगवत गीता इनटू इंग्लिश? वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट क्लास, आपके चार्ल्स विल्किंस ने इसको किया था। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल का निर्माण होता है 1884 के अंदर, जिसमें भारत के लिखे गए स्क्रिप्ट्स, मैन्युस्क्रिप्ट्स को ट्रांसलेट किया जाता है इंग्लिश में, सो दैट दे गेट टू नो बेटर अबाउट इंडिया एंड इट्स कल्चर एंड इट्स रिलीजन। तो उस समय वैरन हेस्टिंग साहब जो थे भारत के, सॉरी आपके बंगाल के गवर्नर जनरल थे, तो उस समय पर चार्ल्स विल्किंस इंग्लिश में इसका ट्रांसलेशन करते हैं, बट इंट्रोडक्टरी पेज जो इंग्लिश का है दैट वाज रिटन बाय वैरन हेस्टिंग्स। ठीक है, चलिए, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपको कहता है कि मैच द फॉलोइंग, आपका पॉलिटी का क्वेश्चन है। तो पार्ट 1 को देखते हैं, तो यूनियन एंड टेरिटरी को डील करता है। पार्ट 3 डील करता है तुम्हारे फंडामेंटल राइट्स। पार्ट 9 डील करता है पंचायत के साथ, और पार्ट 2 डील करता है सिटीजनशिप के साथ। क्लास पार्ट्स याद रखो। ठीक है, पार्ट 4 आपका डीपीएसपी है, पार्ट 5 पार्लियामेंट्री सिस्टम है, ऐसे आपको पार्ट्स याद होने चाहिए, क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, तो राइट सीक्वेंस आपका हो जाएगा 4 1 2 3। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अंडर विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज द प्रेसिडेंट्स रूल प्रोक्लेमेटेड ऑन एनी स्टेट इन इंडिया? भारत में प्रेसिडेंट रूल जो है स्टेट के ऊपर, जैसे स्टेट इमरजेंसी भी बोलते हैं, वो आपके पास किस आर्टिकल के तहत लगाई जाती है? तो आर्टिकल नंबर है 356 प्लस 365 के तहत भी हम लगा लेते हैं। अगर कोई स्टेट सेंटर के लॉस के हिसाब से कंप्लाई नहीं करती, सेंट्रल लॉस को कंप्लाई नहीं करती, कंप्लाई करने का मतलब है कि अगर आपको कोई नियम कानून बताए गए हैं, कोई इंस्ट्रक्शन सेंट्रल गवर्नमेंट से मिली है और स्टेट उसको फॉलो नहीं करती, तो आर्टिकल 365 के तहत आप वहां पर इमरजेंसी लगा सकते हो। ठीक है, पावर्स ले सकते हो उनसे। चलिए, द प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी इशूड अंडर आर्टिकल 352 मस्ट बी अप्रूव्ड बाय द प्रेसिडेंट पार्लियामेंट विद इन। अगर पार्लियामेंट कोई आपकी देश में इमरजेंसी लग जाती है तो उसकी सैंक्शनिंग पार्लियामेंट से आती है, तो कितने टाइम के अंदर मिनिमम आपको वो सैंक्शन जो है वो यस करना होता है, आपको सैंक्शन देनी होती है कि हाँ आप इमरजेंसी कंटिन्यू कर सकते हो। तो वो कितनी है आपके पास? 1 मंथ के अंदर। अगर आज इमरजेंसी लगी है तो आने वाले 1 महीने, अगले 30 दिन के अंदर अंदर आपको वो इमरजेंसी सैंक्शन करनी पड़ेगी, आपको याद रखना है। और एक बार में इमरजेंसी आपके 6 मंथ के लिए कंटिन्यू हो सकती है, ये याद रखना। और n नंबर ऑफ टाइम इसको रिन्यू किया जा सकता है। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंडामेंटल राइट? तो राइट टू प्रॉपर्टी नहीं है। राइट टू प्रॉपर्टी आर्टिकल 31 के तहत आपके पास पहले हुआ करता था लेकिन अभी नहीं है, तो राइट टू प्रॉपर्टी अब आपका एग्जिस्ट नहीं करता है। ठीक है, 44th अमेंडमेंट 1978 इसको रिमूव कर दिया गया। चलिए, विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया अबॉलिश अनटचेबिलिटी एंड फॉरबिड्स इट्स प्रैक्टिस इन एनी फॉर्म? संविधान ऐसा जो छुआछूत और आपके उसके आगे के प्रावधानों को रोकने की कोशिश करता है, कौन सा आर्टिकल आपके पास? तो आर्टिकल नंबर 17 है। ठीक है, 17 इज द आर्टिकल। ठीक है, चलो नेक्स्ट, विच वन अमंग द फॉलोइंग हैज द पावर टू रेगुलेट द राइट ऑफ सिटीजंस इन इंडिया? भारत में जो नागरिकता है उसके प्रावधान को कौन रेगुलेट कर सकता है? तो उसकी पावर सिर्फ और सिर्फ किसके पास होती है क्लास? पार्लियामेंट के पास है, और कोई रेगुलेट नहीं करेगा। अभी सीएनआरसी का केस हुआ था ना 2019 में, तो पार्लियामेंट ने तो लॉ बनाए थे, तभी तो इसके ऊपर आप देख रहे हो ऑब्जेक्शंस क्रिएट हुई थी। चलो, which of the following articles was inserted by the constitution by 86th amendment of the 2002 provided free and compulsory education for all the children between the age group of 6 to 14? 6 से 14 वर्ष के बच्चों को मुफ्त शिक्षा प्रदान कराने का जो आर्टिकल है वो आपका कौन सा है? तो आर्टिकल नंबर 21 है। फंडामेंटल राइट है क्लास आपका, जो आपके संविधान में बात करता है कि आपको
6 से 8 वर्ष के बच्चों को, 6 से 14 वर्ष के बच्चों को मुफ्त शिक्षा देनी चाहिए। कई बार इसका आधार पूछा जाता है, तो इसका आधार जहां से लिया गया है वो डीपीएसपी के आर्टिकल नंबर 45 से लिया गया, ये भी आपको याद रखना। आर्टिकल 45 जस्टिफाई करता है आपके राइट टू एजुकेशन को। चलिए, हु अमंग द फॉलोइंग पर्सन वाज नॉट अ मेंबर ऑफ कैबिनेट मिशन। कैबिनेट मिशन में इनमें कौन से व्यक्ति नहीं थे? तो 3 बंदे थे उसमें, पैथिक लॉरेंस भी थे, स्टैफर्ड क्रिप्स भी थे, एबी अलेक्जेंडर भी थे। पैथिक लॉरेंस इसको लीड भी कर रहे थे। विलियम वुड नाम का कोई व्यक्ति नहीं है, ठीक है, जो इसको लीड कर रहा हो। 3 व्यक्ति हैं जिसको लीड कर रहे हैं, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट, द रिसिप्ट्स व्हिच लीड टू द डिक्रीज इन एसेट्स और एन इंक्रीज इन लायबिलिटीज ऑफ द गवर्नमेंट फॉल्स अंडर व्हिच ऑफ द फॉलोइंग हेड ऑफ द फिस्कल पॉलिसीज। वो कहता है फिस्कल पॉलिसीज में आपके जब एसेट्स डिक्रीज कर जाएं और आपकी लाइबिलिटी देनदारी बढ़ जाए, तो वो आपके कौन सा एक्सपेंडिचर होता है? तो वो कैपिटल रिसिप्ट्स होती है हमारे पास, ठीक है। जैसे गवर्नमेंट ने भी एलआईसी से शेयर निकाल लिए, तो आपने क्या किया? अपने एसेट डिक्रीज कर लिए। पहले आपके एसेट्स सपोज करो 100 करोड़ के थे, आपने उसमें से 25 करोड़ के एसेट्स बेच दिए, अपना शेयर वापस ले लिया, तो एसेट्स डिक्रीज हो गए आपके, ठीक है। ऐसी सिचुएशन में जब आप कोई बोरोइंग करते हो, आपने वर्ल्ड लोन लिया डैम्स बनाने के लिए, तो आप उस समय आपकी लायबिलिटी बढ़ गई, आपको देनदारी देनी पड़ेगी, तो वो कैपिटल रिसिप्ट की कैटेगरी में आता है, ठीक है। चलिए, इनविजिबल एक्सपोर्ट मींस द एक्सपोर्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम्स। ऐसी चीजें जिनको आप फिजिकल फॉर्म में नहीं देख सकते, उसको क्या बोलते हैं? इनविजिबल एक्सपोर्ट। तो सर्विस को नहीं देख सकते आप। अगर मैं किसी को ट्रांजेक्शंस कर रहा हूं, किसी के लिए आईटी में वेब बना रहा हूं, तो वो सर्विसेज अगर मैं अमेरिका को यहां बैठे बैठे दे रहा हूं, तो वो आपको नहीं पता लगेगा। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? सर्विस सेक्टर, इनविजिबल ट्रेड। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग टैक्स लिवाइज डिक्रीज एज द इनकम गोज ऑन इंक्रीज। जैसे जैसे इनकम बढ़ती है टैक्स आपका डिक्रीज हो जाए, इस टेस्ट को हम लोग क्या बोलते हैं? रिग्रेसिव टैक्स। बट अगर आपकी इनकम बढ़ रही हो और टैक्स भी इंक्रीज कर रहा हो, तो उसे प्रोग्रेसिव टैक्स कहते हैं, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट, डैश कंट्रोल द सप्लाई ऑफ मनी एंड बैंक क्रेडिट टू इंडिया। देखो, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है क्लास। मॉनेटरी पॉलिसी कौन बनाती है? तुम्हारी आरबीआई बनाती है। तो आरबीआई को ही राइट है कि वो मनी सप्लाई को कंट्रोल करे। जब इन्फ्लेशन होती है तो आप देखते हो ना, आरबीआई ही देखता है कि कैसे रेपो रेट्स बढ़ाने हैं, घटाने हैं, कैश रिजर्व रेशो बढ़ाना है, घटाना है। तो मार्केट में पैसा कितना होगा, कितना नहीं होगा, ये आरबीआई कंट्रोल करती है। वेयर डज द इंडिया स्टैंड ग्लोबली इन द टर्म्स ऑफ मिल्क प्रोडक्शन। दुनिया में दूध के उत्पादन में हमारा पहला रैंक है। 4 जानवर इसमें बेसिकली कंसिडर किए जाते हैं, गायें, बफेलोस यानी कि आपकी भैंसें, ठीक है, कैमल और आपकी बकरियां, ठीक है। तो भैंसें, गायें, ऊंट और बकरी का दूध ही इसमें 4 कैटेगरीज में काउंट होता है, बाकी मिसलेनियस है। मेजरली इन्हीं का है, मेजरली 2 का सबसे बड़ा योगदान है, बफेलोज एंड काउस, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट, द इंडियन एयरफोर्स डिप्लॉयड अ फर्स्ट स्क्वाड्रन ऑफ द S-400 ट्रम्फ ऑफ एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम इन पंजाब सेक्टर। व्हाट इज द इफेक्टिव स्ट्राइक रेंज? 400 किलोमीटर तक की मार है S-400 की। इसको S-400 इसीलिए कहा जाता है क्लास, क्योंकि 400 किलोमीटर की रेंज है। अभी S-500 डेवलप हो रहे, रशियन मेड है, ठीक है। S-300 भी था पहले, तो ऐसे अलग अलग हैं। तो हमने 400 किलोमीटर की मारक तक इसको पंजाब में डिप्लॉय किया है, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट, द पार्लियामेंट पास द इलेक्शन लॉस बिल इन 2021 ऑन December 21, विच द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर ट्रू इन द कॉन्टेक्स्ट। इलेक्शन से रिलेटेड कुछ लॉस पास किए गए थे अभी आपके दिसंबर 2021 के अंदर, तो वो लॉस कौन से थे उसको देखते हैं, ठीक है। वो कहता है कि नाउ द वोटर आईडी विल बी लिंक टू पैन कार्ड, कि आपका जो वोटर आईडी है वो पैन कार्ड से लिंक होगा, वोटर आईडी आधार से लिंक होगा। न्यू पर्सन कंप्लीटिंग 18 ईयर विल गेट 4 अपॉर्चुनिटीज इन टू एनरोल एज अ वोटर। 18 वर्ष का व्यक्ति अपना साल में 4 अपॉर्चुनिटीज ले सकता है कि वो कभी भी अपने आप को रजिस्टर करा सकता है। न्यू सिस्टम विल अवॉइड डुप्लीकेशन ऑफ वोटर कार्ड्स, इससे आपको पता लगेगा कि डुप्लीकेशन नहीं होगी। तो पैन कार्ड से तुम्हारा लिंक करने का कोई सिस्टम नहीं है क्लास, बाकी सारी स्टेटमेंट्स आपकी ट्रू है, ठीक है। पैन कार्ड से कोई लेना देना नहीं है, बाकी सारी स्टेटमेंट्स आपकी ट्रू रहेंगी इस केस में। चलिए, नेक्स्ट, नेशनल मैथमेटिक्स डे जो 22 दिसंबर को बनाया जाता है क्लास, ये किस ग्रेट मैथमेटिशियन के नाम पे है? तो श्रीनिवास रामानुजम जी के नाम पर है, ये 22 दिसंबर को बनाया जाता है। वन इज रिनाउंड मैथमेटिशियन ऑल ओवर द वर्ल्ड, ठीक है। The first set of indigenous developed next generation AERV was inducted in Army 1922 December 21। ये इसकी फुल फॉर्म क्या है? तो इसको बोलते हैं आर्मेंड रिकन्सियंस व्हीकल्स, जो बड़े बड़े व्हीकल्स होते हैं जिससे आप छेद नहीं कर सकते, मतलब जो बुलेट प्रूफ हो जाते हैं और बड़े स्विफ्ट मूव करते हैं। काफी सारे वेपन्स इसमें लगाए जा सकते हैं, गन्स, छोटी आर्टिलरीज वगैरह सब लगाए जा सकते हैं इस पर। What is the name of the short range surface to surface guided missile that tested successfully by DRDO on December 22? क्लास मिसाइल्स याद रखिए प्लीज, कैटेगरी याद रखिए, शॉर्ट रेंज है, सरफेस टू सरफेस है,
बैलिस्टिकल है, नॉन बैलिस्टिकल है, सुपरसोनिक है, सबसोनिक है, तो इट वाज परले, ठीक है, परले का टेस्ट किया अगर सक्सेसफुल रहा है ये आपके पास, ठीक है। नेशनल फार्मर्स डे दिसंबर 23 को मनाया जाता है, ये किसकी बर्थ एनिवर्सरी पे चलता है, तो ये चौधरी चरण सिंह जी जो हमारे देश के प्रधानमंत्री भी रहे हैं, ठीक है, उनके नाम पर। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी थे, देश के प्रधानमंत्री भी बनते हैं, ठीक है, तो उनके नाम पर है। चलिए, विच कंट्री वॉन द सैफ अंडर 19 विमेंस फुटबॉल चैंपियनशिप ऑन December 22 इन ढाका। 22 दिसंबर ढाका को में हुए फाइनल्स जो सैफ के थे अंडर 19 विमेन के, वो किसने जीता इस बार? दैट इज बाय द बांग्लादेश। साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन का जो टूर्नामेंट है उसको, उसकी बात है। चलिए, विच कंट्री होस्टेड द एशियन चैंपियनशिप हॉकी टूर्नामेंट, तो इट वाज डन बाय द बांग्लादेश। बांग्लादेश ने इस बार एशियन चैंपियनशिप को आपके होस्ट किया था। ऑप्शन में बताइए आप कमेंट सेक्शन के अंदर कि विनर कौन था इस बार इसका, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट, विच नेशनल कंज्यूमर डे ऑन December 24 मार्क द इनेक्टमेंट ऑफ द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986। द करंट कॉन्स्टिट्यूशन प्रोटेक्शन एक्ट वाज पास्ड इन विच ईयर। 24 दिसंबर को हम नेशनल कंज्यूमर डे बनाते हैं, जिस उस दिन पर आपका एक कानून तैयार हुआ था 1986 के अंदर। तो इस बार ये लास्ट जो हमने कंज्यूमर एक्ट बनाया वो कब बनाया है? 2019 में तैयार किया, ठीक है। इसका नया एक मोमेंटो भी बनाया गया, एक जिसको बोलते हैं मस्कट। तो जागृति इज अ नेम गिवन टू द विमेन, जो कि इसका सिंबल रहेगा आज में। जागृति इज अ नेम, याद रखना है आपको। गुड गवर्नेंस डे 25 दिसंबर को मनाया जाता है। इस समय किस वेटरन लीडर का जन्मदिन होता है? आपके अटल बिहारी वाजपेयी जी के जन्मदिन। भारत रत्न से नवाजित हैं आपके अटल बिहारी वाजपेयी साहब, ठीक है। द नटमेग्स कर्स इज अ नॉवल बाय विच ऑफ द फेमस ऑथर, तो इट वाज रिटन बाय अमिताभ घोष। क्लास बुक्स एंड ऑथर के सेक्शन याद रखा कीजिए, बड़े फेमस पर्सनैलिटी हैं आपके अमिताभ घोष जिन्होंने बुक लिखी है, ठीक है, द नटमेग्स कर्स। चलिए, दिस इज ऑल वी हैव फ्रॉम दिस सेक्शन। बाकी सेक्शन के लिए जुड़े रहिए, थैंक यू। हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे। जैसे कि आपको पता है कि हर वीक आपके लिए एक मॉक टेस्ट लाया जाता है, तो मैं आशीष आज आपके साथ फिर से हाजिर हुआ हूं और उन मॉक टेस्ट में जो क्वेश्चन थे उसे कैसे सॉल्व किया जाएगा उसके बारे में हम चर्चा यहाँ पे करेंगे। चलिए, तो सबसे पहले यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करता हूँ तो फर्स्ट क्वेश्चन में आप लोग देखें, अ चार्ट कैन बी पुट एज द पार्ट ऑफ द प्रेजेंटेशन यूजिंग। जब भी आप चार्ट जो है प्रेजेंटेशन में बनाते हैं तो उसे कैसे यहाँ पे बनाया जाता है, कौन से ऑप्शन से लिया जाता है? तो सबसे पहले आता है इंसर्ट। इंसर्ट में आते हैं पिक्चर, और पिक्चर में आपके पास ऑप्शन क्या मिलता है? चार्ट्स। तो यहाँ पे आंसर क्या बनेगा? ए ऑप्शन। यहाँ पे आंसर क्या बनेगा? ए ऑप्शन आपका आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करता हूं, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, द अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स सच एज टाइटल एंड सब टाइटल, टेक्स्ट, पिक्चर, टेबल्स एक्सेट्रा इज कॉल्ड। ये जितनी भी चीजें होती हैं, टाइटल होता है, सब टाइटल होता है, टेक्स्ट होता है, पिक्चर होते हैं, टेबलेट होते हैं, एक्सेट्रा, इनको क्या बोलते हैं? ये इनको बोलते हैं लेआउट। इनको क्या बोलते हैं? लेआउट के नाम से आप लोग जानते हैं, ठीक है जी। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करता हूं, अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द टाइप ऑफ साउंड फाइल। ये आपको याद करना पड़ेगा, साउंड फाइल जो है वो कौन सी होती है, ठीक है। अब जैसे .jpeg पिक्चर फाइल होती है, तो उसी तरीके से यहाँ पे क्या होता है, ये पूछा गया है वेव, WAV आपके पास क्या है? एक जो है साउंड फाइल है, एक क्या है? साउंड फाइल आपके पास यहाँ पे है। आंसर इज सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करता हूं, आगे आपके पास क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन यू यूज टू एड टाइम टू द स्लाइड्स इन अ प्रेजेंटेशन। अब जब भी आप लोग प्रेजेंटेशन चलाते हैं, पीपीटी चलाते हैं, तो उसमें अगर आपको टाइम लगाना है तो वो कैसे पॉसिबल है, कैसे आप टाइम लगा सकते हैं? तो वो है माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में। अब देखो, अगर कई बार हम बोलते हैं कि जी वर्ड में या एक्सेल में टाइम, वहाँ पे नहीं लगता है, ये सिर्फ और सिर्फ पीपीटी में होता है कि ये 20 सेकंड या 30 सेकंड के बाद स्लाइड क्या हो जाएगा, जो हो जाएगा चेंज हो जाएगा, या नेक्स्ट आ जाएगा, या कुछ भी हो जाएगा। तो ये सिर्फ और सिर्फ पॉसिबल है आपके पास पावर पॉइंट में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं आपके पास, विच व्यू इन अ पावर पॉइंट कैन यू यूज टू एंटर द स्पीकर कमेंट। ऐसा नहीं है कि टाइम ही लगता है, यहाँ पे आपके पास स्पीकर के कमेंट, मतलब जो भी आप बोल के कुछ बताना चाहते हैं वो भी यहाँ पे लगाया जा सकता है। सबसे पहले नॉर्मल, स्लाइड शो और स्लाइड शॉर्टर, या फिर नोट्स पेज व्यू में ये जाके आपके पास ऑप्शन जो है लगता है। आंसर इज डी ऑप्शन। आंसर इज डी ऑप्शन।
नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करता हूँ, व्हाट इज द एक्सपेंडेड फॉर्म ऑफ सीमोस। सीमोस क्या होता है, इसका फुल फॉर्म आपसे पूछा गया है। सीमोस स्टैंड फॉर कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर, ये आपको याद रखना है। अब ये इंपॉर्टेंट क्यों है, जब भी आप लोग अपने कंप्यूटर में सिस्टम को ऑन करते हैं तो सबसे पहले सीमोस सेल जो है एक्टिवेशन का काम करता है, या फिर आप लोग इस चीज़ को ऐसे भी समझ सकते हैं, जब भी मान लीजिए आपने अपने कंप्यूटर को 15 दिन ऑफ रखा, 15 दिन के बाद जैसे ही आप अपने कंप्यूटर को ऑन करते हैं तो इसमें एक चीज़ बड़ी कॉमन होती है कि आपके सिस्टम का टाइम और कैलेंडर क्या हो जाता है, अपडेट हो जाता है। वो कैसे पॉसिबल है, वो पॉसिबल किस वजह से होता है, सीमोस सेल की वजह से। क्योंकि सीमोस सेल क्या काम करता है, अपने ऊपर उतनी इलेक्ट्रिसिटी स्टोर कर लेता है जिससे कि टाइम टू टाइम आपके सिस्टम या टाइम टू टाइम आपके कैलेंडर को क्या किया जा सके, अपडेट किया जा सके। वो सारा का सारा काम किस में होता है, आपके पास सीमोस सेल में। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करता हूं, आगे क्या है, हु इज नोन एज द ह्यूमन कंप्यूटर ऑफ इंडिया। अब ये आपने मूवी भी देखी होगी तो शायद आपको और भी ज्यादा पता होगा। शकुंतला देवी, शकुंतला देवी को हम लोग ह्यूमन कंप्यूटर ऑफ इंडिया जो है मानते हैं। शकुंतला देवी ह्यूमन जो है आपके पास कैलकुलेटर हैं, ठीक है, इन्हें ह्यूमन कंप्यूटर के नाम से जाना जाता है। जो अभी इंडिया में नहीं रहती हैं, अमेरिका में रहती हैं, पर ओरिजिन इनका क्या है, इंडियन है, तो इस वजह से इनको ह्यूमन कंप्यूटर के नाम से जाना जाता है। आप इनसे कोई भी कैलकुलेशन करा लीजिए, बहुत ही फास्ट, जितना मर्जी बड़ा नंबर दे दीजिए, ये कैलकुलेट करके दे देती हैं। इनके ऊपर एक मूवी भी बनी हुई है, वो भी आप लोग इंटरनेट पर चेक कर सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है, विच डे इज सेलिब्रेटेड एज द वर्ल्ड कंप्यूटर लिटरेसी डे। आपको ये जरूर पता होना चाहिए क्योंकि आज की डेट में इसके बिना कहीं पे भी काम नहीं चलता। इसका सबसे बड़ा एग्जांपल है आपका मोबाइल फोन। तो आपको पता होना चाहिए कि 2 दिसंबर, दिसंबर 2 को इसे क्या माना जाता है, वर्ल्ड कंप्यूटर लिटरेसी डे के नाम से हम लोग मनाते हैं। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, अनदर नेम फॉर द लॉजिकल चिप। दूसरे नेम से हम जानते हैं लॉजिकल चिप को, तो पी रोम, मेमोरी, माइक्रो प्रोसेसर या फिर रोम। तो आंसर इज सी ऑप्शन, माइक्रो प्रोसेसर, ठीक है, इसी के नाम से हम लॉजिकल चिप को जानते हैं। नेक्स्ट आगे आपका क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली लिस्ट कंप्यूटर्स मेमोरी टाइप फ्रॉम हाईएस्ट टू लोएस्ट स्पीड। ध्यान देंगे, हाईएस्ट स्पीड से लोएस्ट स्पीड की आपके पास यहाँ पे बात करी गई है। तो सबसे पहले आपके पास क्या आती है, कैश मेमोरी। कैश मेमोरी क्या होती है, जो थोड़ी थोड़ी देर के बाद आप लोग अपने मोबाइल फोन से क्या करते रहते हैं, डिलीट करते रहते हैं। तो आपने देखा होगा कि आपका सिस्टम क्या हो जाता है, फास्ट हो जाता है। तो सबसे पहले आती है कैश, फिर उसके बाद आते हैं सीपीयू रजिस्टर। सीपीयू रजिस्टर क्या होता है, टेम्परेरी मेमोरी होती है, दिस इज नॉट एन ए परमानेंट, दिस इज ए टेम्परेरी मेमोरी। फिर मेन मेमोरी, ठीक है, जिसमें अगर मैं मेन मेमोरी की बात करूं, देखो रैम लिखा है, रैम एंड रोम इसके अंदर आते हैं। फिर है सेकेंडरी मेमोरी, इसमें हार्ड डिस्क आता है, आपके पास सीडी डीवीडी किस में आता है, सेकेंडरी मेमोरी में। तो इसका आंसर क्या बनेगा, सबसे पहले किसकी है, कैश की, कैश के बाद रजिस्टर, मेन मेमोरी एंड अप टू मेन के बाद सेकेंडरी मेमोरी ही आपके पास यहाँ पे बचता है। तो होपफुली बात आपको क्लियर है। चलिए, तो यहाँ तक सभी को क्लियर है। जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू क्लास। हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू ज्ञानम। हाँ जी, आप डिस्कस करते हैं रीजनिंग। पहला क्वेश्चन इज रिलेटेड टू कोडिंग डी कोडिंग। क्या हो रहा है यहाँ पे, +1 +1 +1, यहाँ पे भी +1, फिर IJCDUV। ठीक है जी, पूरे क्वेश्चन में क्या हो रहा है, +1 हो रहा है। हमसे लखनऊ का कोड मांगा, क्या करेंगे, +1, L+1 M है ना, U+1 V, C+1 D, K L NO OP WX। डन। नेक्स्ट 1 5 9 +4 +4 +4 क्या आएगा, 9 + 4 13, दैट इज M। ठीक है, 4 + 4 12 + 4 16, 4 16, दैट इज P। आंसर इज C। क्लियर। नेक्स्ट, 5 persons are standing in a queue.
one of two person at extreme end is professor and other is businessman. ठीक है जी, 5 person है, ठीक है जी। यहां पे बिजनेसमैन और प्रोफेसर, बिजनेसमैन और प्रोफेसर, ठीक जी। एन एडवोकेट इज स्टैंडिंग टू द राइट ऑफ द स्टूडेंट, स्टूडेंट के राइट में, स्टूडेंट दे राइट कौन है, एक एडवोकेट है। ऑथर इज टू द लेफ्ट ऑफ बिजनेसमैन, इधर ता राइट लेफ्ट, इधर कोई नहीं बैठा, मतलब बिजनेसमैन दे लेफ्ट च कौन है, ऑथर। बिजनेसमैन प्रोफेसर, द स्टूडेंट इज बिटवीन प्रोफेसर एंड एडवोकेट, स्टूडेंट एडवोकेट, गल खत्म। काउंटिंग फ्रॉम द लेफ्ट, ऑथर केड़े प्लेस ते है, ऑथर 4th प्लेस ते है। हाँ जी, मिडल च कौन है, मिडल च कौन आया, एडवोकेट आया। हाँ जी, इस दे नाल रिलेटेड हुण क्वेश्चन आपां कर लांगे अगे। शिखर इज 9th फ्रॉम द बैक, 9th फ्रॉम द राइट, अरुण's प्लेस इज 8th फ्रॉम द फ्रंट, अरुण 8th फ्रॉम द लेफ्ट, निखिल ये दोनों दे विच खड़ा है, ठीक है। पूछा कि आपां नूं मिनिमम लेफ्ट प्लस राइट माइनस जिन्ने नंबर ऑफ पर्सन क्वेश्चन किए इन्वॉल्व है, ठीक है। 17 माइनस 3 14, ठीक जी। देखो अगला क्वेश्चन, सम रेड आर क्रो, ऑल क्रो येलो, ऑल येलो आर रैबिट, ऑल क्रो रैबिट, यस। येलो आर रेड, यस। रेड आर रैबिट, यस। सम रैबिट आर काउस, है ना जी। इत्थे तक गड़बड़ होगी, जे काउ है तो गलत है, जे क्रॉस है तो ठीक है। इत्थे सी आर आना चाहिए सी, ठीक है। सो आंसर इज ऑल फॉलो। हाँ जी, एनोलॉजी की आऊगा कि यह है मनी स्कैंडल, ठीक है जी। नेक्स्ट, हाँ जी, अ गर्ल अपने घरों बाहर निकलती है, ठीक है जी। शी फर्स्ट वॉक 30 मीटर इन द नॉर्थ वेस्ट, 30, ठीक है जी। देन साउथ वेस्ट, फिर गई 30, डन। फिर साउथ ईस्ट, फिर गई 30, ठीक है। फाइनली शी टर्न टुवर्ड्स हिज हाउस, ठीक है जी। उन्हें दोबारा इसी साइड तो आना शुरू कर देना। हुण की पूछा, इन विच डायरेक्शन इज शी मूविंग, किस पासे गया, साउथ ईस्ट। इन विच डायरेक्शन ही इज वॉकिंग, बच्चे पहले साउथ ईस्ट वाल गया, एक मिनट, पहला की होया नॉर्थ वेस्ट वाल गए, नॉर्थ वेस्ट एसी, नॉर्थ वेस्ट, फिर साउथ वेस्ट, ठीक है जी। फिर नेक्स्ट गया 30 किलोमीटर, ठीक है जी। तो आंसर की आना चाहिए, साउथ ईस्ट वाल गया, साउथ ईस्ट वाल गया। मैं ये गलत लेके गई है ना, साउथ ईस्ट वाल गया ना। इस तो बाद ये तो नॉर्थ होया, साउथ ईस्ट, साउथ और ईस्ट इधर आ गया। मैं एक बार रिपीट कर दा। हाँ जी, एक गर्ल सी जिसने घरों पहला कित्थे गई, नॉर्थ वेस्ट वाल गई। फिर इस तो बाद वो गर्ल इत्थे आई, केड़ी डायरेक्शन, साउथ वेस्ट विच, ठीक है। फिर वो गर्ल इत्थों किस डायरेक्शन च गई, साउथ ईस्ट वाल गई। जे उन्हें अपने घर जाना होए तो हुण वो गर्ल कित्थे जाऊगी, नॉर्थ
ईस्ट वाल जाऊगी। ठीक है जी, तो आंसर इज नॉर्थ ईस्ट। ठीक, हाँ जी। अगला क्वेश्चन, ब्लड रिलेशनशिप पॉइंटिंग टू अ वुमन। एक वुमन ਨੂੰ पॉइंट करते हुए फोटोग्राफ च मैन ने कहा, वुमन ਨੂੰ पॉइंट किया, ठीक है, फोटोग्राफ विच की क्या, दिस वुमन इज, यह वुमन कौन है, यही वाइफ है, किसकी वाइफ है, वाइफ ऑफ द फादर ऑफ। हाँ जी, यह जो वुमन है यह वाइफ है, किसकी वाइफ है, फादर ऑफ माई वाइफ्स ब्रदर। ठीक है, मेरी वाइफ, मैन दी वाइफ दे ब्रदर दे फादर दी यह वाइफ है। ठीक है जी, वुमेन की लगती है परसन दी। हाँ जी, इस परसन दी की लगी, मदर इन लॉ। ठीक, हाँ जी। इफ 17th day of the month is 3 day earlier than Friday, 1 2 3 है ना, फ्राइडे 17th थर्सडे वेंसडे ट्यूसडे, what day will be on 19th of the month, 18 19 की आएगा, थर्सडे। हाँ जी, ऑड वन आउट, बाकी सारे सिर ते पाए जाते हैं, ते यह कवर करने लिए यूज होता है। ठीक है जी, अगे अगला ब्लड रिलेशनशिप द क्वेश्चन पॉइंटिंग टू द गर्ल, गर्ल नु पॉइंट करते हुए की क्या गया, दिस गर्ल इज द डॉटर ऑफ द ओनली चाइल्ड ऑफ माई फादर। दिस गर्ल, ए गर्ल कौन है, दिस गर्ल इज द डॉटर ऑफ, ए गर्ल डॉटर है, ओनली चाइल्ड किस दे, करमजीत दे, की क्या गया, पॉइंटिंग टू गर्ल, गर्ल नु पॉइंट करके क्या, करमजीत ने की क्या, ये जो गर्ल है यह डॉटर है, किस दी, ओनली चाइल्ड ऑफ माय फादर। ये जो डॉटर है यह करमजीत दे फादर दा जो ओनली चाइल्ड है उसकी डॉटर है, करमजीत दे फादर दे जो इकलौते चाइल्ड है उसकी डॉटर है। रिलेशन ऑफ करमजीत्स वाइफ टू दैट गर्ल, हाँ जी की लगी, मदर। हाँ जी, मल्टीप्लाई बाय 2 3 4 अगे क्या होगा, 5। ठीक है, आंसर इज 360। The time in the clock is 12:15, मतलब 12:15। ठीक है, if the hour hand is in the direction of east, की डायरेक्शन होंगी है, नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट, इस तो बाद क्या होगा, साउथ, फिर वेस्ट, फिर नॉर्थ। ठीक है, पूछा की गया which is the direction of the opposite of minute hand, minute hand आसी is the opposite, किया होगा north। थैंक यू जी। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका ज्ञानम के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। और आज के इस सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं आपके मॉक टेस्ट का कंप्लीट मैथ के पार्ट का, एप्टीट्यूड के पार्ट का कंप्लीट सॉल्यूशन। तो स्टार्ट करते हैं हम फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, द एलसीएम ऑफ टू नंबर्स इज 495 एंड देयर एचसीएफ इज 5 इफ द सम ऑफ नंबर्स इज 100 फाइंड देयर डिफरेंस। देखो, सबसे पहले तो एक रिलेशन होता है आपका एचसीएफ इनटू एलसीएम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स, इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स। ठीक है, एचसीएफ इनटू एलसीएम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स। अगर आपके पास दो नंबर्स का जो एचसीएफ है वो 5 गिवन है, तो आप कह सकते हैं कि वो दो नंबर्स आपके क्या होंगे, 5x और 5y। तो यहाँ पे मैंने दो नंबर्स को लेट किया कि वो क्या है, 5x और 5y। देखो, अगर इसको सॉल्व करेंगे 5 से 5 कैंसिल, ये 5 इसको डिवाइड करेगा, फर्स्ट 9 और फिर 9, यानी कि x इंटू वाई आपके पास क्या है, 99 है।
x इंटू वाई आपके पास क्या है 99। अगर x की वैल्यू 1 है तो y की वैल्यू क्या होगी 99 होगी, x की वैल्यू 3 है तो y की वैल्यू क्या होगी 33, और x की वैल्यू 9 है तो y की वैल्यू क्या होगी 11 होगी, y की वैल्यू क्या हो जाएगी 11। अब देखो जो ये 3 और 33 है ये तो पेयर कंसिडर ही नहीं होगा, क्योंकि x और y हमेशा आपके कोप्राइम पेयर होते हैं, x और y आपके कोप्राइम पेयर। अगर हम ये लेते हैं तो x की वैल्यू 1 पुट करो 5 बनेगा और y की 495, सम 100 वाली कंडीशन अप्लाई नहीं होगी, तो x और y की वैल्यूज क्या है 5 और 9। तो ये फर्स्ट नंबर आपको क्या मिला 45 और सेकंड नंबर क्या मिला आपको 55। तो उसने पूछा था डिफरेंस क्या हो जाएगा 10। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर होगा, ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ए एंड बी कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 18 डेज। ए और बी किसी वर्क को 18 डेज में कंप्लीट करते हैं, बी एंड सी इन 24 डेज एंड ए प्लस सी इन 36 डेज। ठीक है, अगर यहां से हम इनका एलसीएम लें, एलसीएम क्या होगा 72 होगा। इन व्हाट टाइम दे कैन डू इट वर्किंग ऑल टुगेदर। तो तीनों मिलकर काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। देखो ये एफिशिएंसी क्या है 4, 3 और 2, तो टोटल एफिशिएंसी क्या होगी 9। बट इस एफिशिएंसी में ए ने बी ने सबने काम किया है डबल डबल, तो मैं क्या करता हूं इस एफिशिएंसी को हाफ कर लेता हूं। तो सबको कितना टाइम लगा होगा, टोटल वर्क डिवाइड बाय एफिशिएंसी, और 9/2 2 ऊपर चला जाएगा, इसको 8 पे डिवाइड करो, 8 इंटू 2 16। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर होगा, ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ए 280 मीटर लॉन्ग ट्रेन इज मूविंग एट ए स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर, द टाइम टेकन बाय द ट्रेन टू क्रॉस ए प्लेटफॉर्म। देखो अगर कोई ट्रेन किसी प्लेटफॉर्म को क्रॉस करती है तो कितना डिस्टेंस ट्रेवल होता है, दोनों की टोटल डिस्टेंस 280 प्लस 220 500, 60 किलोमीटर पर आवर है, तो इसको क्या करें इंटू 5/18 से मीटर पर सेकंड में चेंज कर लें इंटू टाइम। देखो 0 से तो 0 कैंसिल हो गई, 6 इसको 3 पे डिवाइड कर देगा, 5 इसको 10 पे डिवाइड करेगा, और 10 इंटू 3 30 सेकेंड इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। बहुत आसान क्वेश्चन था, मतलब इस टाइप के जो क्वेश्चन है ना आप सिर्फ माइंड में सोल्व कर सकते हैं बिना पेन पेपर के। बाय सेलिंग ए वॉच फॉर 1140, कि 1140 में एक वॉच को सेल किया गया, ए मैन लॉस 5%, दैट मींस जो ये वैल्यू है ये मेरी 95% की वैल्यू है। इन ऑर्डर टू गेन 5%, तो 5% मतलब आपको 105% की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। देखो अगर मैं इसको सिंपली 5 से डिवाइड करूं तो इसको 19 पे डिवाइड करेगा और 5 इसको 21 पे डिवाइड करेगा, ठीक है, और ये इसको पूरा पूरा 60 पे डिवाइड करेगा, क्योंकि 19 इंटू 6 क्या होता है 114 होता है आपका, 21 इंटू 6 126 और पीछे एक जीरो लग जाएगी, तो 1260 रुपए इस क्वेश्चन का आंसर होगा। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं, ए शॉपकीपर मिक्स 2 वेराइटीज ऑफ टी, वन कॉस्टिंग 35 रुपीज 35 रुपीज पर केजी एंड अनदर 45 रुपीज पर केजी इन द रेशो 3:2। तो जो देखो फर्स्ट वाला है उसका प्राइस कितना होगा 3 इंटू 35 मतलब 105, सेकंड वाला कितना होगा 2 इंटू 45 दैट मीन्स 90। तो टोटल उसने जो अमाउंट वहां पे खर्च किया वो कितना खर्च किया 195, और ये 195 जो खर्च किया गया है ये किसके ऊपर खर्च किया गया है 5 केजी के ऊपर। तो पहले तो ये 3 पे डिवाइड करेगा, फिर 49 मतलब जो सीपी है वो 39 रुपीज है, और उसके बाद कह रहा है कि वो 41.60 में सेल भी कर रहा है, तो प्रॉफिट कितने का हुआ है। देखो 39 से 41.6 मतलब 2.60 का प्रॉफिट हुआ है इसके ऊपर 39 के ऊपर इंटू 100। देखो इस पॉइंट से ये 100 कैंसिल, 13 से डिवाइड किया 3 और 13 से डिवाइड किया 20/3, तो 62/3% का क्या हो रहा है उसको गेन हो रहा है। ऑप्शन ए आपका इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, ऑप्शन ए आपका इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। आई होप ये क्लियर होगा। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ए टैप कैन फिल ए टैंक इन 6 आवर्स, आफ्टर हाफ द टैंक इज फिल 3 मोर सिमिलर टैप्स आर ओपन, व्हाट इज द टोटल टाइम टेकन टू फिल द टैंक। देखो एक टैंक उसको 6 आवर्स में फिल करता है, ठीक है, तो उसकी एफिशिएंसी क्या हो जाएगी 1/6 हो जाएगी, ठीक है, एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी 1/6। उसने उसको हाफ फिल कर दिया, ठीक है, हाफ फिल कर दिया,
और जो बचा हुआ है वो कितना बचा हुआ है, हाफ अभी भी बचा हुआ है। और इसके साथ आफ्टर हाफ द टैंक इज फिल्ड 3 मोर, मतलब सिमिलर 3 मोर पाइप्स और ओपन कर दिए गए हैं, तो सबकी एफिशिएंसी क्या है, सेम है। सबकी एफिशिएंसी क्या है, सेम है। तो टोटल टाइम डिवाइड बाय टोटल एफिशिएंसी, टोटल वर्क डिवाइड बाय टोटल एफिशिएंसी 1/2। ठीक है, देखो इन सब का अगर एलसीएम लेंगे तो 6 हो जाएगा। तो 4/6, 4/6 का मतलब मैं इसको लिख सकता हूं कि 2/3, 2/3। तो इसको सोल्व करेंगे तो 1/2 इंटू 3/2, ठीक है, तो 3/4, ठीक है, 3/4, तो 45 मिनट्स इसको फिल करने में लगेगा सर। ठीक है, और उससे पहले 3 आवर्स उसको लगे थे, क्योंकि 6 आवर्स में कंप्लीट फिल कर रहा है, तो हाफ में कितना करेगा, 3 आवर्स में करेगा, और 45 मिनट उसके बाद लगेंगे, तो 3 आवर्स 45 मिनट उसको टोटल टाइम लगेगा। ठीक है, क्योंकि हाफ फिल करने में उसको 45 मिनट और पहला हाफ वो 3 आवर्स में कर चुका था। क्या कह रहे हैं, राकेश क्रेडिट 15% ऑफ हिज सैलरी इन द फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट एंड स्पेंड 30% ऑफ द रिमेनिंग अमाउंट ऑन ग्रोसरीज। इफ द कैश इन हैंड इज 2380, व्हाट इज सैलरी। ओके, चलो क्वेश्चन यही तक है, सिर्फ ये सेम स्टेटमेंट आ गया दोबारा से, इसको कट कर देते हैं। अगर हम कहें कि उसके पास x रुपीज है, ठीक है, तो 15% तो उसने डिपॉजिट करवा दिया, तो रिमेनिंग कितना है उसके पास, 85% है। और जो रिमेनिंग था उसका 30% उसने खर्च कर दिया, तो अब उसकी पॉकेट में कितना होगा, 70%, और जो किसके इक्वल है आपका 2380 के इक्वल है। किसके इक्वल है, 2380 के इक्वल है, 2380। देखो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगी, 7 से डिवाइड करेंगे, 7 इंटू 3 21, ठीक है, उसके बाद 4 पे डिवाइड करेगा 340। अगर इसको हम 5 से डिवाइड करें 17, और 5 से डिवाइड करेंगे तो 2, 17 इसको फिर 20 पे डिवाइड करेगा, तो ये कितना आ जाएगा आपका 4000, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 4000। चलिए उसके बाद बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका, ए मेंस बेसिक पे फॉर ए 40 आवर्स पर वीक इज 20 रुपीज। ठीक है, एक हफ्ते में वो 40 घंटे काम करता है, ठीक है, और वो उसके लिए कितना रुपए कमाता है, 20 रुपए कमाता है। ओवर टाइम इज पेड फॉर 25% अबव द बेसिक रेट, और बेसिक रेट के बाद उसको 25% क्या करता है, वो अपना उसको ओवर टाइम मिलता है। इन ए सर्टेन वीक ही वर्क फॉर ओवर टाइम एंड टोटल वेज इज 25 रुपीज। देखो यहां से यहां तक आने में उसको मतलब 5 रुपए उसने एक्स्ट्रा कमाए हैं, तो मतलब 5 के लिए उसने कितना किया है, ओवर टाइम किया है। ठीक है, अगर मैं यहां से बात करूं तो उसने कितना किया होगा, देखो उसने पूछा है ही देयरफॉर वर्क फॉर ए टोटल ऑफ, तो उसने कितने घंटे के लिए काम किया था, 45 के लिए, नहीं 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 48 के लिए, मतलब उसने जो ओवर टाइम किया था वो 8 आवर्स किया था। देखो अगर हम यहां से बात करें कि 20 रुपए कमाता है, तो यहां से अगर वर्क की बात करें तो आपका 20% ही तो इंक्रीज होगा, 20% ही तो उसका वेजेस इंक्रीज होगा, और इसका 20% ही क्या होता है, 8 होता है। अगर उसने ओवर टाइम किया है तो उसको कितना मिलेगा, 48 आवर्स उसने काम किया होगा। द एरिया ऑफ स्क्वायर पार्क इज 25 स्क्वायर सेंटीमीटर। एरिया ऑफ पार्क 25 स्क्वायर, तो मतलब उसकी साइड कितनी है, 5, क्योंकि 5 का स्क्वायर 25 होता है। द टाइम टेकन टू कंप्लीट अराउंड द फील्ड 1, देखो तो इसने कितना डिस्टेंस कवर किया, 5 इंटू 4 20, क्योंकि टोटल पेरीमीटर क्या हो जाएगा 20 इंटू 3। अच्छा टाइम पूछा है तो 3 इंटू टाइम, तो 20/3, 20/3, तो ये हो जाएगा 6 2/3, तो 6 आवर्स 40 मिनट, ऑप्शन सी, ऑप्शन सी। चलिए उसके बाद 2 cubes each with 8 सेंटीमीटर एज आर joined to end the surface area of the resulting cube। देखो जब आप अगर करोगे तो उसकी लेंथ तो इंक्रीज हो जाएगी 8 + 8, क्योंकि 2 क्यूब आपने मिला दिए हैं 60। ठीक है, उसकी जो विड्थ है वो 8 ही रहेगी, जो हाइट है वो भी उसकी 8 रहेगी। ठीक है, उसने पूछा है सरफेस एरिया, और सरफेस एरिया क्या होता है, ट्वाइस ऑफ L इंटू बी प्लस B इंटू एच प्लस, देखो L इंटू बी, B इंटू एच और L इंटू एच,
तो 16 इंटू 8, 16 इंटू 8। ठीक है, इसको सॉल्व करना है और हमें इसका आंसर बताना है। देखो ये तो हो गया 64, और उसके बाद अगर 8 इंटू 6 48, कैरी 4 128 प्लस 128 256, 256 ये हो जाएगा 260, 320, 320 इंटू 2 640, 640 इस क्वेश्चन का आंसर होगा। 640 आपका इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ये क्या कह रहा है, ए बैग कंटेन्स 25 पैसा, एक बैग में 25 पैसा के कॉइन्स हैं, 10 पैसा के कॉइन्स हैं और 5 पैसा के कॉइन्स हैं इन द रेशियो 1:2:3 इफ द दे टोटल वैल्यूज इज 30। अब देखो, और ये किस रेशियो में है, ये 1, 2 और 3 के रेशियो में है। ये किस रेशियो में है, ये 1, 2 और 3 के रेशियो में है। मैं क्या करता हूं, इनको डिवाइड कर देता हूं, इसको डिवाइड बाय 4, इसको डिवाइड बाय 10 और इसको डिवाइड बाय 20। मैंने क्या किया, 1 रुपए में जितने जितने सिक्के होते हैं उसे डिवाइड कर दिया इसको रुपीज में चेंज करने के लिए। एलसीएम लेंगे तो देखो 20 होगा, तो ये हो जाएगा 5, 2, 4 और 3 कि इनके रुपीज का जो रेशियो है ना वो 5:4:3 है, 5:4:3 है। तो टोटल कितने यूनिट हो गया, ये टोटल कितने यूनिट हो गया आपका 12 यूनिट हो गया। और 12 यूनिट की वैल्यू क्या है 30, 1 यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगी 30 डिवाइड बाय 12, 5/2। 1 यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगी 5/2। उसने पूछा था 5 पैसा के कॉइन्स, तो देखो 5 पैसा के रुपीस कितने हैं, 3 इंटू 5/2 इंटू 20, 2 से डिवाइड किया 10, तो 15 इंटू 10 150, तो कॉइन्स कितने होंगे आपके 150। हमने पहले इसको पूरे को रुपीज में चेंज किया, ठीक है, और उसके बाद रेशियो को यूज किया। द एवरेज एज ऑफ 30 स्टूडेंट ऑफ ए क्लास इज 30 व्हेन द एवरेज एज ऑफ द क्लास टीचर इज ऑल्सो इंक्लूड द एवरेज एज ऑफ द होल क्लास इज 1 ईयर। देखो अगर पहले 30 थी, अब 30 प्लस 1 31 लोग हो गए हैं तो 61, बस इतना सा क्वेश्चन होता है ये, इससे ज्यादा बिना पेन पेपर का क्वेश्चन है मैक्सिमम। मैक्सिमम क्वेश्चन आपके विदाउट पेन पेपर के हैं। क्या करें, ए एंड बी आर टू टाउन्स cover the distance A to B at 16 and he covered the distance from B to A at 9 average speed। तो जब डिस्टेंस सेम हो तो एवरेज स्पीड के लिए क्या फॉर्मूला यूज करते हैं, 2xy डिवाइड बाय x प्लस y, तो मतलब 25। ठीक है, अगर इसको सॉल्व करते हैं तो ये देखो 16 इंटू 9 144, 144 इंटू 2 288, 288 डिवाइड बाय 25 डिवाइड करेंगे तो पहले तो 1 पे ही डिवाइड करेगा, उसके बाद 3 38 फिर 1 पे, मतलब 11 पॉइंट समथिंग। तो ऑप्शन सी, पूरा डिवाइड करने की जरूरत ही नहीं आपको। ठीक है, उसके बाद इन ए पार्टनरशिप ए इन्वेस्ट 1/6 of the capital for 1/6 of the time, B invest 1/3 of the capital for 1/3 of the time and C rest of the capital। देखो टोटल कैपिटल 1 थी, 1 माइनस 1/6 माइनस 1/3, एलसीएम लेंगे तो 6 हो जाएगा, तो 6 माइनस 1 और माइनस 2, तो 3/2 मतलब 1/2, कितना बचा हुआ है 1/2 फॉर द होल टाइम। अगर एलसीएम लोगे देखो 1/36, 1/9 और 1/2, ये इनका रेशो है, ये इनका रेशो है। लो एलसीएम, तो आपका एलसीएम क्या होगा 36, तो ये आ जाएगा 1:4:18। आउट है टोटल प्रॉफिट 4600, टोटल प्रॉफिट कितना हुआ 23, जो किसके इक्वल है 4600 के। तो भैया 1 किसके इक्वल आ गया 200 के इक्वल आ गया। बी शेयर 4 यूनिट, तो 4 यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी 800 हो जाएगी, 4 यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगी 800। ऑप्शन सी आपका इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। बस क्वेश्चन को, स्टेटमेंट को, लैंग्वेज को, पैटर्न को समझो। क्या कह रहा है, द सम ऑफ द एज ऑफ सन एंड फादर इज 56 ईयर, के सन और फादर, बेटे और पिता की जो एज का जो टोटल सम हो 36 है। आफ्टर 4 इयर्स द फादर विल बी थ्राइस, आफ्टर 4 ईयर 4 साल बाद। तो मैं कह सकता हूं कि 4 साल के बाद अगर ये 3x है तो ये मतलब x है, तो टोटल कितना बना 4x, और इनका सम कितना होगा 64, क्योंकि अगले 4 साल में फादर में भी +4 और सन में भी +4, टोटल +8। तो x की वैल्यू क्या हुई 16, तो ये 16 और ये 44 है। देयर इज
48, 16 और 48 ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, ये लास्ट क्वेश्चन था ये हमारा। आई होप सभी बच्चों को ये क्वेश्चन क्लियर होंगे। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू सो मच। Hello everybody, welcome to this English section by Gyan. I am Piyush Sardana, your budding English language teacher. Guys, let us check what we have in store for the English section. सबसे पहले आपके पास आया एक पार्ट जो आपको बोल्ड में दिया गया है, राइट? आप उसको इंप्रूव करना है, इसको बोलते हैं सेंटेंस इंप्रूवमेंट, राइट? ही ग्रैब द मैन फ्रॉम द ओवरकोट, नहीं बाय होता है, ही ग्रैब द मैन बाय द ओवरकोट, ओवरकोट से ग्रैब किया उसको। देन वी हैव शी कुड नॉट हेल्प बट लाफ, वो हेल्प नहीं कर सकी लेकिन हंसती रह गई। हेल्प बट लाफ बिल्कुल सही है, नो इंप्रूवमेंट। ब्रिंजल्स आर डेड चीप, ये शायद इडियम्स आ गए हैं which can correctly substitute that part and find the phrases, right? इडियम फ्रेज आ गया है। सो गाइज डेड चीप नहीं, देयर इज अ वर्ड कॉल्ड डर्ट चीप, मिट्टी के भाव बिकते हैं चीजें, डर्ट चीप। द चाइल्ड जंप्ड विद डिलाइट ऑन सीइंग द जोकर एट द सर्कस। When you talk about the word जोकर, जोकर नहीं आएगा, वहां क्लाउन आएगा। चाइल्ड खुश हो गया जब उसने क्लाउन को देखा, सर्कस वाले को। नेक्स्ट फिर से इडियम्स आ गए। इट विल बी वाइज ऑन योर पार्ट टू लेट द बायगॉन्स बी बायगॉन्स। ये अब बहुत अच्छा होगा कि आप जो है ना, बायगॉन्स मतलब जो चीज चली गई है चली गई है, बीती हुई चीजों को बीती चीजों में रहने दीजिए। इसको क्या बोलते हैं? पास्ट को इग्नोर कीजिए, कोई जरूरत नहीं है उसकी, उसको हम सिर्फ वाइंड कर सकते हैं। बीती हुई बातों पे मिट्टी डालो, which means ignore the past. Next, what we have in store is the boy had a hair-breadth escape from a street accident. क्या बताना है इसका? Idioms. Hair-breadth escape मतलब narrow escape मिला, मतलब hair जितना मोटा escape, बाल बचना is called narrow escape. Next we have is, अब यहां पे आपको बताना है जो closest to the opposite है इसके, बिल्कुल closest to the opposite of the meaning। आपके पास वर्ड है he made several attempts to placate his opponents, आंसर आ जाएगा infuriate, ये तो डायरेक्टली गिवन है। Guerrillas infiltrated into the region during the severe winter of 1997, इसमें भी आपको opposite बताना है। तो जब opposite बताने का तरीका क्या है, ये कहता है ये क्या हुआ, एक्सपेल कर दिए गए हैं। बेसिकली पहले आंसर अंदर था, अब है बाहर, एक्सपेल्ड। इसका सिनोनिम पेनिट्रेटेड है। द हैमबर्गर टेस्ट्स ऑफुल, बहुत ऑफुल टेस्ट करता है। नेक्स्ट, व्हेन वी गॉट होम फ्रॉम द एयरपोर्ट वी वर और वेरी स्लीपी, हम बहुत नींद में थे, स्लीपी फील कर रहे थे। आई डैश डियर गो एंड आंसर द डोरबेल, आंसर करो मैं खाना बना रहा हूं, आई एम कुकिंग। शॉवल, सिनोनिम्स बताना है। शॉवल इज मोर लाइक, जो उठाने के लिए होता है ना, ऐसे खोदने के लिए, मोर लाइक स्पेड। ब्लॉन्ड, एंटोनिम्स बताना है। ब्लॉन्ड इज लाइट सा, ऑपोजिट इज डार्क, हाँ डार्क। फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट वर्ड। डैश टुक पार्ट इन द डिस्कशंस, नीदर, किसी ने भी पार्ट नहीं लिया था डिस्कशन में। फिल इन द ब्लैंक, शी गॉट आउट ऑफ द डिफिकल्ट सिचुएशन समहाउ, एनीहाउ, व्हाट्सएवर, मिडवे। somehow, किसी तरीके से तो वो बाहर निकल ही गई। There we go. I hope you enjoyed it. Thank you.